2022 focuses on enhancement and quality education, and they are also focusing on the skill development of the students. So in the same regard, today I would like to welcome the members of organizing committee, esteemed speakers of today's session, and all the dignitaries present here on the online platform. So before moving forward without any formality, I would like to share some insights about today's speaker, that is Dr. Bharti Pandey. She is professor. Madam has 29 years of experience in teaching, and presently she is head of the Department of Economics in Shri Jayanarayan PG College, Lucknow. She has been the member and coordinator of IQAC. She is chairperson and member of many boards, and she is the member of Board of Studies at JNPG College, Lucknow. Now, I would like to request Madam Professor Dr. Bharti Pandey to share her views and experience on research, consultancy, and extension in regard with the NAAC. Ma'am, over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Swati, for inviting me. First of all, I must congratulate Professor Anshu Kedia ji, our principal of Kunkunji Girls College, and our Luakta General Secretary for organizing such a wonderful and very important and innovative program of NAAC based on different criteria. I must also thanks to Anshu Kedia ji and the organizer of this workshop. मैं सबसे पहले अब start करूंगी criterion 3 पर, which is based on the research, innovation and extension. The first of all, I must give the introduction of the theme or criterion 3, that is research, innovation and extension. What are the importance of this criterion? So it is true that the major focus of affiliated constituent colleges is teaching, learning and evaluation. तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो affiliated colleges हैं मैंने basically base किया है इसमें कि क्या वो है और कैसे हमको नेट के लिए, चाहे वो जो नए कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट साइकिल में जाते हैं या जो रिसाइकिल में जाते हैं, सेकंड साइकिल में जाते हैं, थर्ड साइकिल में जाते हैं, उनके लिए भी कैसे हमको प्रिपरेशन करनी होती है। और यहाँ पर उन कॉलेजेस के लिए ज्यादा है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो कैसे अपने को प्रिपेयर करें और या फर्स्ट के बाद सेकंड या सेकंड के बाद थर्ड में जाते हैं। सो द कमिंग टू द बैक ऑन द इम्पोर्टेंस, research and innovation are also considered important as the teacher quality and institutional social responsibility are dependent upon the institutions contributing towards research and innovations. Students should have an opportunity to translate their new ideas into products and services. Higher education institutions are expected to have facilities for promoting research and इनोवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस प्रकार से अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेजेस में किस प्रकार से रिसर्च और इनोवेशन और एक्सटेंशन सर्विसेज को किस प्रकार से वो प्रमोट करेंगे, कैसे फैसिलिटेट करेंगे। Considering the limitations of the colleges with regards to research and innovations, low weightage is given to these two in assessment. अभी आगे जो टेबल आ रही है उसमें आप देखेंगे कि कितना weightage दिया गया है innovation और research को, and higher weightage is given to extension activities. As the affiliated colleges are expected to take up activities involving faculty and students to serve the society. It deals with the facilities provided and efforts made by the institutions to promote research culture. The institution has the responsibility to enable faculty to undertake research projects useful to society. मतलब जो भी research projects ली जाएं वो ये मानकर चला जाता है कि वो जो society है उसके लिए purposeful हों। तो अब आप देखिए next slide, please, Swati, please, next slide. Swati ji, please, next slide. Yeah. Now you may say कि यहाँ पर key indicators, no, please
Go to the second slide. The second slide. It is the third one. Yeah. So the weight The is second given. one. Yeah, this is second one. The weight is given. Key indicators are on the left side and the right side. The weight is. So the weight is given to resource mobilization for researchers only 10. Innovation ecosystem 15. Research publication and awards 25. काफी अच्छा वेटेज दिया है रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स को, मीनिंग भाई हमारा जो नेट का एक्रेडिशन होगा उसमें रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स को का वेटेज काफी होगा। इसको इंप्रूव करके हम अपनी ग्रेडिंग को अप कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको जो वेटेज है, सबसे हाईएस्ट वेटेज क्राइटेरियन 3 में एक्सटेंशन एक्टिविटीज को दिया गया है। और ये वेटेज, और इसमें भी डिफरेंट है, अलग अलग, इसमें भी सब क्राइटेरियन है, उनमें अलग अलग वेटेज डिवाइड किया गया। वो आगे वाली जो स्लाइड्स आएंगी आप उसमें देखेंगे। तो इसमें जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं इसमें 40 को दिया गया है। और जो कोलैबोरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री से है या अदर जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोलैबोरेशन कैसे करके हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो एनवायरमेंट है, एकेडमिक एनवायरमेंट है, उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसका जो वेटेज है दैट इज ऑफ 120। सो द टोटल weightage is of for affiliated and constituent colleges is 110. Now the next second third slide. थर्ड स्लाइड में देखिए, थर्ड स्लाइड में जो ये वेट जो पहला मैंने बताया रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च, कि मोबिलाइज कैसे करेंगे थ्रू प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो इसमें जो वहां पर दिया हुआ है, आप हमारा जो AQR है उसमें जो दिया रहता है, या जो IIQ है उसमें जो जिस तरह या SSR रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें जो दिया रहता है वो कुछ इस तरीके से दिया रहता है कि ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज for research projects endowments in the institution during the last 5 years। तो इसके लिए नीचे देखिए एक ईयर एंड नंबर दिया रहता है कि किस ईयर में, तो लास्ट 5 इयर्स हैं आपके, उनमें किस तरीके से, इसमें मैंने फिल नहीं किया है उसको क्योंकि छोड़ दिया है, जैसा भी जिसका हो उसमें फिल कर सकता है। और इसमें कितना जो है वो ग्रांट जो है कितनी गवर्नमेंट से मिली है, और डेटा जो अपलोड करना है इसमें जो फाइल डिस्क्रिप्शन है उसके लिए दिया हुआ है। जो इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वो वहां पर दिया हुआ रहता है। जो इंस्टीट्यूशन का डेटा है उसको आपको फीड करना होता है, अपलोड करना होता है। और दूसरा इसमें जो है वो है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट इस समय, पहले जब NAAC होता था तो प्रक्रियाएं थोड़ा सा सरल थी, इजी थी। ये अब इजी नहीं है क्योंकि ये सब अब जो होता है, जो अभी 2 दिन की आपकी वर्कशॉप चल रही है, 3 दिन हो गया, रदर 4 दिन हो गया है, शायद 14 या 15 से चल रही है, उसमें बताया गया होगा कि जो वेटेज है वो 70% जो वेटेज है वो एक्सटर्नल वहीं से डिसाइड हो जाता है कि जितना हम यहाँ से अपलोड करते हैं। मतलब जो डेटा वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है जिसको हम DVV कहते हैं, उसके थ्रू 70% हो जाता है। और 30% जब हमारी पीयर टीम आती है कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में आती है, यूनिवर्सिटीज में आती है, तो वहां पर 30% उसका वेरिफिकेशन करके 30% उसका वेटेज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेटा जाएंगे वो सर्टिफाइड वे में, उनपे बाकायदा जो है सील मोहर लगती है, स्टैंप लगता है, और वो बाकायदा अपलोड होता है, तभी उसको वहां पर रिकॉग्नाइज करते हैं, वो काउंट करते हैं, अदरवाइज उसको काउंट नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। ये इसी से रिलेटेड है कि हमको किस तरह का ये जो भी ग्रांट रिसीव्ड है इसको फीड कैसे करना होता है। देखिए मैंने इसको टेबुलेशन फॉर्म में यहाँ पर लिया है कि कैसे करेंगे, जिसमें जो टेबल का पहला वो है, इसमें सीरियल नंबर में आप 1 2 3 4 5 सपोज करिए आपके यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स आ रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो DST के थ्रू आ रही हो, चाहे ICSSR की आ रही हो, UGC से आ रही हो, जहां से भी आई हैं इन 5 सालों में, उनको आप जो है सीरियल वाइज, ईयर वाइज सिंक्रोनाइज करेंगे यहाँ पर। और उसमें इन डेटा को यहाँ पर देखिएगा आप, नेम ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एंडाउमेंट, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट आई है उसको यहाँ पे नेम करना है।
देन नेम ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड को इन्वेस्टिगेटर उनके देने हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, वो जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, जिस डिपार्टमेंट में है वो वहां पर एफिलिएटेड है, उसका देना है। देन ईयर ऑफ अवार्ड, किस साल वो अवार्ड हुई है। देन अमाउंट सैंक्शन, कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने साल की है, साल भर की है, 6 महीने की है, माइनर है, मेजर है, 2 साल की है, 3 साल की है, कितने साल की वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद इसमें है नेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी, कहाँ से मिली है, और उसके बाद टाइप, गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट सेक्टर से है या कि गवर्नमेंट से लिया गया है या जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से लिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको टेबुलेशन फॉर्म में फीड करना होगा, बहुत एक्यूरेटली फीड करना होता है, क्योंकि जो एनआईआरएफ का डेटा होता है, जो नेट का डेटा होता है, और जो एआईएससी का डेटा होता है, तीनों डेटा इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड होते हैं। एक जगह भी आपने गलती की तो उसको दूसरी जगह से कैच कर लिया जाता है। तो कोई भी डेटा न तो हमें फेक भरना है, न मैनिपुलेट करके भरना है। जो भी डेटा है वो एक्यूरेट फॉर्म में हर जगह, तीनों जगह भरना होता है। ये नहीं कि हमने यहाँ कोई और डेटा भर दिया और एआईसीटी में कोई और डेटा भर दिया और एनआईआरएफ में हमने कोई और डेटा भर दिया। तो तीनों जगह का जो डेटा होगा वो मैच करना चाहिए, नहीं तो ये माना जाता है कि आपने किसी तरीके का मैनिपुलेशन किया है। नाउ कम टू द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड फॉर दिस, कि ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कैसे इसको करें। इसमें जो है अप्लाई फॉर एक्स्ट्रा मोरल फंडिंग फॉर रिसर्च, जो बाहर की एजेंसीज हैं, बाहर एजेंसीज हैं, उनके लिए अप्लाई करिए। ग्रांट इज स्पॉन्सर्ड बाय द नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज सच एज इंडस्ट्री, corporate houses, international bodies for research projects, endowments, etc. and chairs in the institute। कोशिश हमारी ये भी होनी चाहिए कि जो डिफरेंट चेयर्स हैं गवर्नमेंट की, वो जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में आए। अभी ये बहुत कम है, कॉलेजेस में चेयर्स कम आती है, यूनिवर्सिटीज में तो है, कॉलेजेस में कुछ ही कॉलेजेस हैं जहां पर आता है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में चेयर्स आए। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल साइन इन एमओयू विद इंडस्ट्री, corporate, etc., to carry out industry institute oriented project research placement, etc., provide training to industry personnel in the upgrading fields technology. The institute has to upload data as required in the template। ऊपर की जो इस टेबल में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा को अपलोड करना होगा। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज स्वाति जी। यस, नाउ दिस इज द की इंडिकेटर 3.2, मतलब जो हम ले रहे हैं क्राइटेरियन 3, उसका जो सेकंड इंडिकेटर है दैट इज द इनोवेशन इकोसिस्टम। गवर्नमेंट इसको काफी प्रमोट कर रही है, तो इस पे एम्फेसिस, वेटेज तो उतना नहीं है, वेटेज इसका 10 और 15 वेटेज है इसका। तो इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, उनको अभी मैं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि 2 सब कैटेगरीज हैं। एक का वेटेज 10 है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना काम करना है, इंस्टीट्यूशन में अपनी प्रिपरेशन करनी है, और या कर रखी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग हमको अपलोड करना है। और दूसरा क्राइटेरिया है, जैसे ये 3.2.1 है, उसे 3.2.2 अब ये आ रहा है। तो इसका जो बेसिक को है वो मैं आपको बताती चलूं। The institution has to create an ecosystem for innovation, including an incubation center, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश कर रही है गवर्नमेंट, उसको प्रमोट कर रही है कि ये सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस्टेब्लिश किए जाएं। तो एंड अदर इनिशिएटिव्स फॉर द क्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। The institution shall conduct workshop, सेमिनार्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैटेंटिंग, इसको बहुत एम्फेसिस गवर्नमेंट दे रही है। सेमिनार्स फॉर आईपीआर एंड इंडस्ट्री एकेडमिया इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। तो हमारा जो है वो इंटरेक्शन रहे इंडस्ट्री के साथ, हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो इंडस्ट्री है, दोनों के कोलैबोरेशन से हम कैसे, बेसिकली क्या है, हाउ टू मतलब कैसे हम आगे की तरफ बढ़ें, चाहे कंट्री को बढ़ाएं, अपने इंस्टीट्यूशन को बढ़ाएं, अपने प्रदेश को बढ़ाएं। तो अब सपोज करिए हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी के लिए कैसे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, सपोज करिए आई एम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो मैं कैसे इंडस्ट्री से अपने को कोरिलेट करूं। बीबीए डिपार्टमेंट है, एमबीए डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, या कोई सोशल सेक्टर है, जैसे अंशु जी सोशियोलॉजी से हैं, तो वो कैसे जो सोशल सेक्टर्स हैं वो वहां पे कैसे उसको कोलैबोरेट किया जाए।
So awards for innovation won by institution, teachers, research scholars, students, startups incubated on campus are explicitly commended. तो ये होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो चीजें हैं ऊपर जो दिया है वही। Institution has created an ecosystem for innovation and has initiatives for creation and transfer of knowledge. Patents fields published incubation center facilities in the higher education system to be considered। और इसको हमको 500 वर्ड्स में लिखना होता है। यहाँ पर जब हम अपना डेटा फीड कर रहे होते हैं तो ये चूंकि क्वालिटेटिव है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो मैट्रिक्स है ये क्वालिटेटिव है, मैंने लिख रखा है QLM लिख रखा है। जहां QNM होगा दैट इज क्वांटिटी, और जहां पर भी QLM होगा दैट इज क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। तो दिस इज क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंतर्गत हमको लिखना है। उसके साथ ही साथ हमें जो फाइल डिस्क्रिप्शन है उसमें जो चीजें करनी है वो है अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर और भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको अपलोड करना जरूरी है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइड लिंक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। सपोज करिए आपका, जैसा कि उस दिन मैं सुन रही थी, उस दिन प्रोग्राम में मैं थी, शिवानी जी प्रेजेंट कर रही थी और उन्होंने वेबसाइट के बारे में उन्होंने काफी डिस्कस किया था। तो उसमें कि हमें जितनी भी एक्टिविटीज हमारी हैं कॉलेज में जो नेट से रिलेटेड या वैसे भी, चाहे वो क्राइटेरियन 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं, 4 से हैं, 5 से हैं, 6 से हैं, 7 से, देयर आर 7 क्राइटेरिया एज वी नो। तो उन सभी को हमको अपना जो वेबसाइट है कॉलेज की, उस वेबसाइट पर अपलोड करके और उसके लिंक को, जिससे होगा क्या, जब हम यहाँ पर उस लिंक को देंगे तो वो वहां पर उस लिंक को खोल लेंगे और वहां से सारा डिटेल जो है वो देख लेंगे। तो इसको हमको देना जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। As we know that the NAAC and National Education Policy 2020 underlines the importance of creating an innovation ecosystem in every higher educational institution. This emphasizes research and innovation by setting up startup incubation centers. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी में जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएं, सेंटर्स इन फ्रंटियर्स एरियाज ऑफ रिसर्च हो, ग्रेटर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज को साथ कॉलेजेस में ये हमारा एफर्ट होना चाहिए, और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज रिसर्च ये होना चाहिए। इस पे हमारा emphasis होना चाहिए। Innovation is to come up with new ideas and technologies that increase productivity and generate greater output and value with the same input. Higher education institutions shall develop specific hand-holding mechanism involving faculty and student for promoting innovation. A positive and vibrating environment shall be created on the campus to support innovation. ये बहुत important है। A positive and vibrating environment shall be created on the campus, and it is necessary to establish, देखिए यहाँ पर बहुत साफ साफ NAAC ने दे दिया है that it is necessary to establish entrepreneurship, innovation and startup centers, EISE जिसको कहा गया है, in the institution for the purpose। तो ये बहुत जरूरी है कि EISE जो है वो सारे कॉलेजेस में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर EISE एस्टैब्लिश किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो, नेक्स्ट स्लाइड जी। तो स्ट्रैटेजी क्या हो, तो स्ट्रैटेजी के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, एनकरेज innovative and interdisciplinary ideas, experiments and projects, encourage and guide the student to present papers in the seminar and conferences, encourage the faculty and student to visit research oriented labs, industries such as DRDO, DSO and BHL। ये साइंस को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी देखना होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, उससे सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, या किसी और सब्जेक्ट से, हिंदी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, आर्कियोलॉजी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो जिससे एंथ्रोपोलॉजी से है, तो जिससे भी रिलेटेड है उन इंस्टीट्यूशंस को हमें, हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी फैकल्टी है और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको विजिट करें। Motivate the student to their project works in research laboratories and industries. Provide access to e-journals and e-books to faculty and students. Allocate
स्लॉट्स इन द टाइम टेबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि एलोकेट स्लॉट्स इन द टाइम टेबल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब भी हम जो है वो अपना टाइम टेबल बनाएं तो उसमें हमें अपने टाइम टेबल में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए हम एक पीरियड, चाहे डेली बेसिस पर चाहे वीक में 2 या 3 दिन, हमको इसको रखना चाहिए। पेस्ट लिंक्स फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द वेबसाइट, ये मैंने पहले भी आपको बताया। कंस्ट्रक्टिव innovations can be converted to property, intellectual property, like patents, etc. Now the next, अब इसमें देखिए, इसमें है 3.2.2 में, दिस इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है, और इसमें है कि नंबर ऑफ वर्कशॉप क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो हमको प्रमोट क्या करना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमें अपने कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज एटलीस्ट न 7 डेज की हम कर पाए तो कम से कम 3 डेज की हम कर पाए, तो इसको हमें प्रमोट करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोग्राम करने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप ईयर वाइज ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स, जो 5 सालों में हमने किया है या हम करें, दोनों चीजें हैं। अभी हम मान लीजिए किसी साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में नहीं जा रहे हैं या सेकंड साइकिल में नहीं जा रहे हैं, हमें अभी अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें इन चीजों को हमें प्रमोट करना है। और फिर इसको डेटा रिकॉर्ड, हम जानते हैं कि आईक्यूएसी का काम जो है वो डेटा रिकॉर्ड का है, तो उसको हमें बनाकर रखना है, और उसको फिर जब हम अपलोड करेंगे तो इसको ईयर वाइज हमको टोटल जो है इसमें फीड करना होगा। फाइल डिस्क्रिप्शन में ये है कि क्या क्या हमें अपलोड करना है, तो वही है कि इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ हैं हमारे, और उसके अलावा भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो इसमें मेंशन्ड नहीं है, उनको भी अगर हम लगाना चाहें कि हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम उन्हें भी लगाएं। अपलोड द रिपोर्ट एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट एंड प्रोवाइड द लिंक। तो जो भी हम अपनी वेबसाइट पर, सबसे जो जरूरी चीज है कि जो भी एक्टिविटी हम करें उसका जो लिंक है उसको हम अपने वेबसाइट पर अपलोड करें, और वेबसाइट का लिंक जो है जब हम अपना ये फीड करने लगे डेटा, तो वहां पर उस लिंक को प्रोवाइड करें। नाउ द नेक्स्ट वन, अब इसमें देखिए, इसमें कैसे टेबुलेशन हम कैसे करेंगे इसका, तो टेबुलेशन हम करेंगे जो भी हम वर्कशॉप्स करा रहे हैं, सेमिनार्स करा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, आईपीआर पे करा रहे हैं, और या रिसर्च मेथोडोलॉजी पे करा रहे हैं, तो उसको कैसे फीड करेंगे, उसमें ईयर को मेंशन करना है, नेम ऑफ द वर्कशॉप सेमिनार को करना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, ये वर्कशॉप चल रही है, तो इसमें आई थिंक देयर आर more than 300 or more than 250 participants in this program workshop में, तो इस तरह का जितना भी है, और डेट फ्रॉम टू कितने दिन का है उसको हमको करना है, और लिंक टू दी एक्टिविटी रिपोर्ट ऑन दी वेबसाइट, उस लिंक को हमें यहाँ फिट करना है। जैसे यहाँ पे होगा वहां पर क्लिक करेंगे और उसको वो देख लेते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, सो कंडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्कशॉप, इसको हमें प्रमोट करना है। जो प्रिंसिपल्स हों, जो आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर्स हों, जो आईक्यूएसी के मेंबर्स हों, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हों, उनको ये आगे बढ़कर आना होगा कि उनको वर्कशॉप हैं, सेमिनार्स हैं, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की हो, आईपीआर की हो, या किसी एंटरप्रेन्योरशिप की हो, उनको प्रमोट करना होगा। जितना ज्यादा नंबर, देखिए हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम अपने जो उसमें काउंट्स है उसको कैसे बढ़ाएं, नंबर्स को कैसे बढ़ाएं, स्कोर को कैसे बढ़ाएं, तो वो स्कोर उसी तरह बढ़ेगा कि जितना ज्यादा नंबर यहाँ पर होगा उतना ज्यादा स्कोर हमारा बढ़ता जाएगा। और हर क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, हर क्राइटेरिया का, हर सब क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। 7 के 7 और 7 में जितने सब क्राइटेरिया है, जितना वेटेज दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। नाउ द नेक्स्ट वन है दैट द अपलोड ब्रोशर जियो टैगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो टैग फोटोग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चले, चाहे बार काउंसिल का चल रहा है, चाहे नेक का होगा, कोई भी जो इंस्पेक्शन होगा उसमें सबसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर वो वहीं से उसको चेक कर लेंगे। आपका फोटोग्राफ जो है उसके साथ करके जियो टैगिंग अगर कर दी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैंडेटरी है जियो टैगिंग। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम जो भी अपनी, हम कोई भी फेक चीज नहीं दिखा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है,
हमें जो भी करना है वो जियो टैगिंग के थ्रू, जहां जहां मेंशन्ड है, जिस जगह पे मेंशन्ड है कि इसकी जियो टैगिंग, सपोज करिए हमने कॉन्फ्रेंस कराई, हमने सेमिनार कराया, या सपोज करिए कोई जो और इनोवेटिव आइडियाज हैं उस पे कोई चीज हम अपने यहाँ पे सोलर पैनलिंग कर रहे हैं, तो सोलर पैनलिंग कर रहे हैं जिसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, तो ग्रीन एनर्जी हम लिख देने से काम हमारा नहीं चलेगा, हमको सोलर एनर्जी का जियो टैगिंग वो जो लगाएंगे हम, उसकी जियो टैगिंग करके वहां हमको अपलोड करना होगा। कोई सेमिनार होगा, उसका जो बैनर हमने बनाया है उसको हमको अपलोड करना पड़ेगा, उसका जो हमने ब्रोशर बनाया है उस ब्रोशर को हमको अपलोड करना पड़ेगा। तो सारी चीजों की, जहां पर हमने उस प्रोग्राम को कराया, जो भी हमारा वेन्यू रहा है, जहां पर हमने उसको कंडक्ट कराया है, उसका हमारे पास फोटोग्राफ होगा और उसकी जियो टैगिंग हमको करनी पड़ेगी। सो अपलोड ब्रोशर्स, जियो टैग फोटोग्राफ विद डेट एंड कैप्शंस, the title of the workshop seminar conducted, furnish the information as required in the table above, जो ऊपर मैंने टेबल बताई है, इसमें जो भी डेटा है उस सभी को, सारी इंफॉर्मेशन को आपको अपलोड करना है, फर्निश कर लेना और अपलोड कर देना। नाउ द नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो वेटेज दिया गया है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट इन क्राइटेरियन 3, और ये है हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स। तो हम सभी जानते हैं वी ऑल आर टीचर्स, तो हम करते भी हैं इस काम को, तो इसमें बहुत ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वेटेज इसमें न केवल यूजीसी केयर लिस्ट में जितने भी जर्नल्स हैं उन्हीं को दे रहा है, बाकी को वेटेज नहीं दे रहा है। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर जो हमारे और जर्नल्स में पेपर्स हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन जो इसमें दिया हुआ है, जो नैक कंसीडर कर रहा है, नैक केवल यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल के पेपर्स को ही, उन्हीं को कंसीडर कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स इन द जर्नल्स नोटिफाइड ऑन यूजीसी केयर ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, तो लास्ट 5 ईयर्स या आने वाले 5 ईयर्स, वो कभी लास्ट 5 ईयर्स होंगे। तो हमको प्रमोट क्या करना है कॉलेजेस में या अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च के तौर पर जो पेपर पब्लिकेशंस है उनके तौर पर, कि हमें कोशिश ये करनी है कि जितने भी पेपर्स हमारे हों वो ज्यादातर यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में ही हों, बाकी ना। लेकिन इसमें बहुत अवेयर रहने की मैं यहाँ पर आपको बताती चलूं, क्योंकि जो रिसर्च पब्लिकेशन है केयरलिस्ट का, उसमें भी क्लोन्ड जर्नल्स बन जाते हैं, उसको बहुत देख सुनकर समझकर तभी आप अपने पेपर्स भेजें, नहीं तो कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है कि आपने पेपर देखा तो यूजीसी केयरलिस्ट जर्नल, जो यूजीसी के पुणे का जो वो है वहां से आपने देखा यूजीसी के उससे, लेकिन जो केयरलिस्ट का वो है लिस्ट है वहां से what she is saying. Samalka is saying something. Hello. हाँ जी मैम। मैम आप कंटिन्यू करिए अभी। Shall I continue? Shall I हाँ continue? जी, यस मैम। Okay. 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 तो जो मैं बता रही थी कि हमको ये देखना है कि जो हमारे पब्लिकेशंस हो वो कहीं क्लोन्ड जर्नल में ना हो जाए, तो इसलिए जो है हमको ये देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कैसे हमको डेटा को फीड करना है, एंड द डेटा इज कैसे डेटा, टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स इन द जर्नल नोटिफाइड ऑन यूजीसी केयर divided by number of full-time teachers during the last 5 years और without repeat count। तो बार बार उसको, बार में जो टीचर्स का नंबर है उसको हमें रिपीट नहीं करना है हर पेपर के लिए। हमें सपोज करिए वी आर हैविंग 100 टीचर्स, तो एक टीचर का सपोज करिए 5 पेपर्स हैं और 100 से हम मल्टीप्लाई करके 500, तो काउंट टीचर्स को रिपीट नहीं करना है। पेपर्स की जितने उनके केयर लिस्ट में आ रहे हैं, सपोज करिए देयर आर 500 पेपर्स इन द केयर लिस्ट जर्नल और 100 टीचर्स है, उसको करके मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हम ये निकल आएगा। एंड द फाइल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या हमको देना है, इसमें इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। इसमें एक चीज मैं आपको बताती चलूं, जो नीचे दिया हुआ लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स बाय टाइटल, ऑथर, डिपार्टमेंट, नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन,
अभी आगे टेम्पलेट आ रहा है उसका, उसमें मैं क्लियर कर दूंगी आपको। उसके साथ आपका जो पहला पेज होगा, ये हमको प्रिंसिपल्स को और जो IQVC के कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनको ये ध्यान रखना है कि कैसे जो है उसको करना है। उसमें आपको एक टू कॉपी की एक आपको स्टैम्प बनवा लेना है, और उसको जितने भी लोगों के काम, बहुत बड़ा है ये, बहुत इजी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, कि जितने भी पेपर्स होंगे टीचर्स के, उनका जो फर्स्ट पेज होगा, दैट वुड बी सर्टिफाइड बाय द IQVC कोऑर्डिनेटर और IQVC टीम एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो उसमें 2 कॉपी का सील लगाकर और हमको वी हैव टू सर्टिफाई, उसके बाद ही आपको उसका PDF करके अपलोड करना है। अदरवाइज उसका कोई वैलिडेशन, मतलब कोई जो वेरिफिकेशन वो करेंगे, दैट वुड नॉट बी वैलिडेटेड। तो नाउ द नेक्स्ट, और इसमें बाकी और कुछ नहीं है, एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप उसको कर सकते हैं। नाउ कम टू द टेम्पलेट। ऑन टेम्पलेट में जो चीजें हैं वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इसमें ऊपर देखिए, इधर है टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ ऑथर्स, डिपार्टमेंट ऑफ द टीचर, नेम ऑफ द जर्नल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ISSN नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक लिंक टू वेबसाइट ऑफ द जर्नल, जो भी लिंक है जर्नल की उसका जो है वो देना है हमको, एंड लिंक टू आर्टिकल, पेपर्स, abstract of the article, and is it listed in UGC fair list or not, Scopus और Web of Sciences। जब आप जाएंगे UGC की साइट पर इसके लिए, तो आपको जो है वहां पर आपको खुद ही सारी चीजें, केयर 1 होगा, केयर 2 होगा। तो केयर 1 में आपको केयर 1 लिस्टेड जर्नल्स मिलेंगे, और केयर 2 में आपको जितने भी स्कोपस और वेब साइंसेस के जर्नल हैं, या जिसको हम क्लैरिवेट कहते हैं, जिसको पहले थॉमसन रीडर कहा जाता था, वो सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई पड़ जाएंगी। और वहां पर उन जर्नल्स में आपको अपने, यू हैव टू पब्लिश योर पेपर इन दो जर्नल्स, और बाकी का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो, इंस्टीट्यूट हैज टू एनकरेज फैकल्टी, members, research scholars to publish their research articles regularly in the journal notified on UGC, and provide data about a number of research papers published in the journal notified on the UGC website as per the template. Now the next slide. इसमें 3.2 जो है, ये अगेन जो है, दिस इज अगेन क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, और इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जो सेकंड हमारा होता है अदर देन जर्नल्स में जो पेपर पब्लिश है, उसके अलावा जो है टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड चैप्टर्स इन एडिटेड वॉल्यूम, books published and papers in national international conferences proceedings year wise during last 5 years। इसको हमको चार्ट इसमें दिया हुआ है, ईयर है, नंबर है, और इसका मैट्रिक्स जो निकालेंगे हम, ये भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे हमने इसके पहले रिसर्च पेपर्स के लिए निकाला। टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड चैप्टर्स इन एडिटेड वॉल्यूम, books published and papers in national international conference proceedings, divided by number of full-time teachers during the last 5 years, without repeat count, multiplied by 100। तो इस तरह से हमको काउंट, खुद भी हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें हमको कितना वेटेज आ रहा है। हम खुद भी यहाँ पे भी, जब हम खुद अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लगभग हमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमको उसी तरह से अपने काउंट को, अपने स्कोर को बढ़ाना है। और जो फाइल डिस्क्रिप्शन है उसमें इंस्टीट्यूशनल डेटा उसी तरह जैसे पहले है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने आपको बताया उसी तरह हमको करना है। और उसके बाद एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन है वो अगर देना है तो उसे भी करना है। नाउ द नेक्स्ट, और इसी में जो टेम्पलेट है वो देखिए आप, बिल्कुल क्लियर इसमें दिख रहा है कि इसी फॉर्मेटिंग में आपको डेटा को फीड करना होता है। इसी फॉर्मेटिंग में हमको आपको प्रिपरेशन भी करनी होती है, इसके अलावा कोई और हमारे पास वे नहीं है कि हम किसी और वे में जाएं। तो दिस इज नेचर ऑफ द टीचर, सॉरी, नेम ऑफ द टीचर, इट इज नेम ऑफ द टीचर, टाइटल ऑफ द बुक, उसके बाद चैप्टर published, title of the paper, title of the proceeding of the conference, name of the conference, then national, international, whether it is national or international, then year of publication, ISBN, number of the proceeding, and affiliating institution at the time of publication, and name of the publisher। ये इतनी चीजें हमको क्रोनोलॉजिकल यहाँ पर फीड करनी होती हैं when we fill the AQR or IIQA। Then strategies to be followed. Institute should encourage
faculty, research student to publish books, book chapters in edited volumes, book published and papers in national, international conferences proceeding year-wise during the last 5 years. तो हमें year wise मतलब हमारा टारगेट एटलीस्ट हर टीचर का, देखिए मेरा कहना यहाँ पर है कि सभी टीचर्स का प्रमोशन होता है और सभी टीचर को अपने प्रमोशन के लिए भी करना है। प्रोफेसर बनना है तो 10 पब्लिकेशन, एटलीस्ट 10 पेपर्स, लेकिन 10 पेपर्स का मतलब नहीं है कि वो कोई कैपिंग है कि 10 के बियॉन्ड नहीं जाना है। तो कोशिश हर टीचर की होनी चाहिए कि एटलीस्ट 2 पब्लिकेशंस इन केयर लिस्टेड जर्नल होनी चाहिए, 1 या 2 चैप्टर कंट्रीब्यूशन हो जाते हैं, बाकी 2-3 अगर आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर लेते हैं तो आपका जो टारगेट है और इंस्टीट्यूशन का जो टारगेट है वो पूरा, तो उससे आप जो स्कोर इंस्टीट्यूशन का वो भी बढ़ता है, आपका भी एपीआई बढ़ता है। तो इस तरीके से हमें करना, और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आईक्यूएसी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी अपने टीचर्स को प्रमोट करना है, उनके लिए वो हर्डल्स क्रिएट न करें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल एंड टू द प्रिंसिपल्स ओनली, कि किसी भी टीचर का जो प्रमोशन है या वो अपने अपग्रेडेशन के लिए अगर कुछ करना चाहता है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में अगर जाना चाहता है, तो उसमें हर्डल न बने, उसके लिए उसको फैसिलिटेट करें, उसको प्रमोट करें। Now the institute has to contribute to a good number of popular national international book publishers and procure book e-print for references. लाइब्रेरी वाला इशू अलग से या वो क्राइटेरियन अलग से डिस्कस किया गया, अभी आई डोंट नो, कर दिया गया होगा अभी, चूंकि वो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, कर दिया गया होगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो है ई प्रिंट्स जो है, ज्यादा से लाइब्रेरी को जो है हमें प्रोक्योर कराना होगा, ज्यादा से ज्यादा ई बुक्स को, ज्यादा से ज्यादा बुक्स को, जिससे हमारे टीचर उसका बेनिफिट ले सके वहां से। बाकी डेटा रिक्वायरमेंट फॉर लास्ट 5 years एज पर डेटा टेम्पलेट, ये हमको इसमें फीड करना है। Now the next criteria, that is the key indicator 3.4 extension activities, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए इसमें जो वेटेज दिया गया दैट इज ऑफ 40, और इसके डिफरेंट सब क्राइटेरिया हैं। और इसमें जो पहला क्राइटेरिया है दैट इज द एक्सटेंशन एक्टिविटीज आर कैरीड आउट इन द नेबरहुड community, sensitizing students to social issues for their holistic development and impact thereof during the last 5 years. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में हमको 500 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन को लिखना है कि हमने क्या क्या किया है। इसका जो वेटेज है 3.4.1 का, इसका वेटेज यहाँ पर 10 दिया हुआ है। फाइल डिस्क्रिप्शन में हमें करना है अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड लिंक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये भी वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक जनरेट करना है और लिंक जनरेट करके उसके बाद इसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब स्ट्रेटजीज क्या हो टू बी फॉलोड, इसमें होगा द कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स done by the student as part of the revised curriculum of PG program shall be consolidated as a report with evidence geotagged photograph. अभी तक कुछ भी चल जाता था, अब बिना जियोटैग्ड फोटोग्राफ के कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमको बहुत अवेयर रहना है, कोई चीज हम भूल न जाएं एज एन इंस्टीट्यूशन कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं एनएसएस के, हमारे मान लीजिए कि प्रोग्राम जो ऑफिसर्स हैं वो डिफरेंट यूनिट्स लेके जा रहे हैं, तो हर जितनी भी एक्टिविटी वहां हो रही है उन सब का जो है वो फोटोग्राफ होना चाहिए, क्योंकि उसकी जियो टैगिंग होना जरूरी है। वही अपलोड होगा और उसी को वो देखते हैं, उसी से डेटा वैलिडेशन करते हैं, वो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन उसी से करते हैं। Now the and letters of beneficiaries along with certificates from respective local government departments. Institute has to organize extension programs frequently to expose students to a social atmosphere and motivate students to participate actively in all those programs. The activities undertaken by the institution in association with the Board of Community Development through Education shall also be recorded with proper evidence. The activities undertaken under NSS and NCC programs. Program shall be organized to create awareness on various social issues such as gender sensitization. ये सभी को पता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं सभी को पता है, जितने ऑफिशियल्स हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं या एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं: जेंडर सेंसिटाइजेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ एंड हाइजीन, चाइल्ड केयर एटसेट्रा। Now the next slide. अब इसमें जो 3.4.2 है ये क्वांटिटेटिव है, और इसमें जो है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस रिसीव्ड
for extension activities from government and government recognized bodies. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इसको भी 500 वर्ड्स में हमको लिखना होगा, राइटअप तैयार करना होगा कि क्या क्या हमने किया है, और उसके बाद अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ई कॉपी ऑफ द अवार्ड लेटर एंड द प्रोवाइड लिंक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. स्ट्रेटजी क्या होगी? To encourage students and faculties to participate in the extension activities organized by the institution or on their own, or activities organized by other agencies, government, or activities organized by the international agencies such as Rotary Club, Lions Club, UNO, World Bank, UNICEF, Red Cross, Red Crescent, Green Peace, etc. And furnish the total number of awards and recognition received for extension activities for government recognized bodies. Following data is to be uploaded: name of the activities, name of the award recognition, name of the awarding government recognized bodies, and year of the award. Now the next, and that is 3.4.3. 3.4.3. So the next is number of extension and outreach programs conducted in collaboration with, this is the quantitative matrix. और इसमें हमको जो numbers हैं उसको fill करना है. Number of extension and outreach programs conducted in collaboration with industry, community and non-government organizations through NSS, NCC, Red Cross, etc. year wise during the last 5 years. इसमें टेबल मैंने दे दिया है, टेबल के अकॉर्डिंग इसको फीड कर देना है. जो फाइल डिस्क्रिप्शन है उसमें वही है, इंस्टीट्यूशनल डेटा एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. वेरी मतलब वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, विदाउट सर्टिफिकेशन जो है कोई भी डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड नहीं होगा. जो इसका जो टेम्पलेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. देखिए, नेम ऑफ द एक्टिविटी जो टेबल है इसमें देखिए नेम ऑफ द एक्टिविटी होगा, ऑर्गेनाइजिंग यूनिट कौन सी है, एजेंसी कौन सी है, कोलैबोरेटिंग एजेंसी कौन सी है, नेम ऑफ द स्कीम कौन सी है, ईयर ऑफ द एक्टिविटी. इतने डेटा को फीड करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन अपना डेटा कलेक्ट करना है, कंपाइल करना है और उसको लिंक क्रिएट करना है, और लिंक के बाद उसके बाद इस पर हमें अपलोड कर देना है. स्ट्रेटजी क्या होगी? एवरी इंस्टीट्यूट शुड हैव एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस, वाईआरसी यूनिट्स ऑन देयर कैंपस टू कैरी आउट एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स. डेटा रिपोर्ट एंड अदर फाइल्स हैव टू बी अपलोडेड एज पर डेटा टेम्पलेट. एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन और है तो उसे भी हमें उस पर अपलोड करना है. Now the last one and last indicator, that is the key indicator 3.5, which is the collaboration, and weightage given to collaboration is 20. 20 स्कोर इसको दिया गया है, 20 weightage दिया गया है. और इसमें जो चीजें हैं वो है नंबर ऑफ MOUs. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें MOUs के लिए अपने को वो करना है, ज्यादा से ज्यादा हम अपने इंस्टीट्यूशंस में जो है MOUs करा सकें. कोलैबोरेशंस, लिंकेजेस फॉर फैकल्टी एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फैकल्टी एक्सचेंज करें अपने जो इंट्रा एंड इंटर दोनों, जो बाहर की फैकल्टीज हैं यूनिवर्सिटी से हम लें और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडस्ट्री से लें, कोई और कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वहां से लें. तो ये जो फैकल्टी इंटर एक्सचेंज है उसको हम करें, स्टूडेंट एक्सचेंज करें, इंटर्नशिप कराएं ज्यादा से ज्यादा. हमारा जैसे अभी देखिए आप अंशु जी यहाँ पर हैं और आप समझ रही हैं कि इस समय जो है इंटर्नशिप पर जोर है. ऐसा ना हो कि हम इंटर्नशिप को अवॉइड करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक वो है कि इंटर्नशिप पर फोकस किया है उसने. तो हम इंटर्नशिप को ऐसा ना हो कि उसमें इंटर्नशिप है एंड असाइनमेंट्स हैं, तो हम केवल अपने को कि केवल जिसको कहा जाता है ना कि केवल एक खाना पूर्ति हम कर दें कि हम केवल असाइनमेंट जमा करवा लें और जो इंटर्नशिप है उसको प्रमोट न करें. वी हैव टू प्रमोट द इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स. तो इंटर्नशिप, फील्ड ट्रिप कराएं हम, on the job training कराएं, research and other academic activities during the last 5 years. UG में जितना possible हो सके UG में, और बाकी तो जो PG कोर्सेज हैं उनमें तो है ही, तो इसलिए PG कोर्सेज के लिए तो हमको करना ही करना है. तो बाकी जो है फाइल डिस्क्रिप्शन में ईयर वाइज डेटा हमको फीड करना है. इसमें फाइल डिस्क्रिप्शन में इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द स्प्रेडशीट फॉर्मेट हमको भरना है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज फॉर रिसर्च.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिव ICSSR भी अभी देखिए जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें जो 6 मंथ की ICSSR ने रिलीज की हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें इंडिविजुअल भी दिया है और कोलैबोरेटिव दिया है। इसी तरह और भी जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रमोट कर रही हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा अपने टीचर्स को ये करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लें। तो इस तरह से एक्टिविटी फॉर रिसर्च फैकल्टी एटसेट्रा डेटा टेम्पलेट आगे क्या होगा, कॉपीज ऑफ कोलैबोरेशन एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो टेम्पलेट है वो आप देख लीजिए, इसमें टेम्पलेट में हाउ वी हैव टू फीड द डेटा, उसमें हैगा नेम ऑफ द MU कोलैबोरेशन लिंकेज देना है इसमें, और दूसरा है नेम ऑफ द कोलैबोरेटिंग एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट हाउसेस विद whom the MOU collaboration linkages is made with contact, year of the signing MOU, किस साल हम उसको साइन कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ द MOU, कितने साल का है, लिस्ट द एक्चुअल एक्टिविटीज अंडर ईच MOU एंड वेब लिंक ईयर वाइज एंड लिंक टू द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। स्ट्रेटजी क्या होगी, बस इसके बाद मैं केवल डिपार्टमेंट और उस पे आऊंगी। आइडेंटिफाइंग द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द लोकेलिटी, स्टेट, country relevant to the program offered by the institution। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आइडेंटिफाई करें हमारी जो लोकेलिटी में हमारे आसपास जो भी इस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको करें और इसको हम MOUs साइन कराएं। दूसरा है एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कोलैबोरेशन रिजल्टिंग इन म्यूचुअल बेनिफिट्स सच एज स्टूडेंट इंटर्नशिप on the job training, placement, research projects, training, resource sharing, etc. Collaborate with the reputed institutions, research centers, industries by the way of entering into MOU. Data has to be furnished as per template. और ये टैली मैंने दे दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। ये एक्टिविटी टैली है कि किस तरह से जो डिफरेंट हमारे क्राइटेरिया 3 में अलग अलग हैं उनको कैसे हम इसको टैली करेंगे। ये लिस्ट मैंने, अगर किसी को जरूरत होगी तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए आगे जितने भी क्राइटेरिया हमारे इसमें हैं, 5 देयर आर 5 क्राइटेरिया इन क्राइटेरियन 3, तो आप इनमें से इनको कॉपी कर लीजिए। इससे ये टैली है कि कैसे हम आप टैली करेंगे, इनके थ्रू ये हो जाएगा। और अगर टाइम परमिट करता है तो जैसा अंशु जी ने रिक्वेस्ट किया था, अगर कुछ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के बारे में कि कैसे हम IQAC से कैसे वो किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें भेजना है, कैसे डिपार्टमेंट्स को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो मेन चीज है वो जो ऑफिस है वो है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दैट आर द डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी होती है ये क्राइटेरियन 3 से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। इफ टाइम परमिट्स देन आई मे प्रेजेंट, अदरवाइज। Yes, ma'am, we can move forward. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we would like to hear that. Yes, ma'am. Okay. Thank you. So देखिए इसमें जो पहला जो डिपार्टमेंट को कौन से रिकॉर्ड, द डिपार्टमेंट हैव टू मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता, मुझे या हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, कि ज्यादातर कॉलेजेस इसी बेसिस पर सारी चीजों का प्रिपरेशन हमको करना होता है कि कुछ चीजें जैसे 1 to 5 जो पहला है करिकुलर एस्पेक्ट, जिसमें पहले से पॉइंट 1 to 5 वी हैव टू ईमेल रेगुलरली टू IQAC, और IQAC को इस डेटा रिकॉर्ड को बनाना पड़ता है अपने सिस्टम से निकालकर कि एकेडमिक कैलेंडर, यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर होगा, उसके बेसिस पर हम कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर बनाएंगे, और उसके आधार पर हम अपना डिपार्टमेंट का एकेडमिक कैलेंडर बनाएंगे। ये 3 चीजें होती हैं, यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर, then on the basis of university academic calendar we have to make a college academic calendar, and on the basis of college academic calendar we have to make a departmental academic calendar। तो डिपार्टमेंट में कौन सी एक्टिविटीज कॉलेज के एकेडमिक कुछ कॉमन होंगी, कॉलेज में कॉलेज और डिपार्टमेंट की कुछ कॉमन होंगी और कुछ अलग से होंगी।
तो उनको जो है वो सपोर्टिंग होंगी कॉलेज के लिए, तो वो कॉलेज को, डिपार्टमेंट को भी अपना एकेडमिक कैलेंडर बनाना होगा, और ये एकेडमिक कैलेंडर उनको IQVC को भेजना होता है, और IQVC को उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। दूसरा, टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल, कॉलेज का जो मास्टर टाइम टेबल होता है, उसके बेसिस पर डिपार्टमेंटल टाइम टेबल और मास्टर टाइम टेबल और डिपार्टमेंटल टाइम टेबल दोनों जो है वो IQVC के पास होना चाहिए। प्रमोशंस हैं, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रमोशंस में भी टाइम टेबल की जरूरत है। वैसे भी नैक जब आता है तो टाइम टेबल को जरूर देखता है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी हमारा हाई ऑफिशियल आकर जो है वो टाइम टेबल को चेक कर सकता है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग सेल चुकी है IQVC, उसके पास टाइम टेबल होना चाहिए। और उनको दूसरा है वीकली शेड्यूल। वीकली शेड्यूल कितने कॉलेजेस में बनता है आई डोंट नो। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में हूँ, हमारे यहाँ शुरू से बनता आया है। जब से हम नेट में जाने की सोचे फर्स्ट साइकिल में, तब से हमारे यहाँ जो है वीकली शेड्यूल प्रॉपरली बनता है। उसके पहले से मतलब बनता आ रहा था। वीकली शेड्यूल बनता है लेक्चर पर टीचर, क्लास में वो क्या पढ़ाने जा रहा है नेक्स्ट वीक में, वो सैटरडे को डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर लग जाना चाहिए। जैसे सपोज करिए भारती पांडे, या मेरे डिपार्टमेंट में सपोज देयर आर 7 टीचर्स, तो वो 7 टीचर्स जो हैं वो क्या नेक्स्ट वीक में अलग अलग क्लासेस में यूजी और पीजी में कौन सा लेक्चर देने जा रहे हैं, उसके लिए स्टूडेंट को अवेयर करना जरूरी है। वो जानने रहे कि हमारा टीचर आने वाली क्लास में क्या पढ़ाने जा रहा है, जिससे वो खुद भी पढ़कर आए और हम जब पढ़ाएं तो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली शेड्यूल। तीसरा जो फोर्थ है, दैट इज द फोर्टनाइटली शेड्यूल। 15 दिन का फोर्टनाइटली शेड्यूल कुछ इस तरह बनता है कि कितने क्लासेस, अलॉटेड क्लासेस एंड परफॉर्म्ड क्लासेस, ICT क्लासेस, आउट ऑफ इट हाउ मेनी ICT क्लासेस। तो कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कॉलेज में नहीं होगा, लेकिन जहां पर भी है वहां ICT क्लासेस होना जरूरी होता है। तो कितना क्लासेस अलॉट किए गए टीचर को, सपोज 18 क्लासेस या 16 आवर्स अलॉट किए गए, उसमें परफॉर्म कितनी आवर्स किए हैं 1 वीक में। ये फोर्टनाइटली 15 दिन में एक जाता है पाक्षिक के तौर पर कि इतने दिन में टीचर्स ने इतनी क्लासेस इसके अलॉटेड हुई और इतनी क्लासेस इसने परफॉर्म की हैं। जो पांचवा है दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब तो खैर ऑनलाइन का इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ले रहा है, कोई किसी उसमें है, छुट्टी पर है या किसी और उसमें ड्यूटी लीव पर गया है और फिर भी ऑनलाइन क्लासेस, तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द ऑल स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं सम अप कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नैक जब आता है तो अटेंडेंस रजिस्टर जरूर देखता है, या कोई हमारा हाई ऑफिशियल इसको देख सकता है। अ फाइल ऑफ लेटेस्ट सिलेबस, जितने भी कोर्सेज हमारे हैं, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, जितने भी कोर्सेज हैं उनका सिलेबस जो है वो हमको एक फाइल बनाकर मेंटेन करके रखना होगा। रिकॉर्ड ऑफ ICT enabled classes run by the department in form of PPT। अगर हम ICT क्लासेस ले रहे हैं तो ICT क्लासेस PPT के फॉर्म में होंगी और वो कायदे से फाइल अप होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ प्रैक्टिकल पार्टिसिपेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक्स, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल असेसमेंट, डिजर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क्स एक्सेट्रा। ये नहीं कि हमने असाइनमेंट कराया और असाइनमेंट जो है उसके बाद हमने डिस्ट्रॉय करा दिया, नो, उसको हमें मेंटेन करके रखना है। डिजर्टेशन जितने भी हैं पीजी के, अब तो यूजी में चूंकि प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है तो यूजी का भी प्रोजेक्ट वर्क हमको वी हैव टू मेंटेन दैट। रिकॉर्ड ऑफ एनी सर्टिफिकेट कोर्स रन बाय द डिपार्टमेंट, अगर कोई भी डिपार्टमेंट कोई सर्टिफिकेट कोर्स रन कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना है। नाउ द नेक्स्ट एंड दैट इज द स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिकॉर्ड ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट। पीटीएम का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है कि हमने पीटीएम कराया कि नहीं कराया। अगर नहीं करा रहे कॉलेजेस तो उनको वो पीटीएम कराना होगा। रिकॉर्ड ऑफ एनी फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप अंडरटेकन बाय दिस। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ मेंटोरिंग एक्टिविटीज डन बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट। जैसे मेरे कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, सपोज वी हैव 3 स्टूडेंट्स इन बीए सेमेस्टर 1, सपोज मेरे पास उससे ज्यादा है, मोर देन 450 हैं,
suppose we are having 300 students और if we are 6 teachers, तो हम उनको जो है स्टूडेंट्स को बांट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग 50-50 स्टूडेंट्स हमने कर लिया और एक टीचर के पास 50 स्टूडेंट क्या गया, हम उसकी मेंटोरिंग करते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, बाकायदा रजिस्टर बनाकर उसकी कौन सी प्रॉब्लम आई, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो एकेडमिक प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश और उसका बाकायदा हम डेटा मेंटेन करते हैं. तो रिकॉर्ड ऑफ mentoring activities done by the teachers for the students, record of remedial classes for slow learners, अगर रेमेडियल क्लासेस हम ले रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है, रिकॉर्ड ऑफ एनरिचमेंट क्लासेस फॉर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. ये नहीं कि जो स्लो लर्नर हैं हम उन्हीं के लिए रेमेडियल क्लास चलाएं, हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम एनरिचमेंट क्लासेस चलाएं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें. Student result compilation including pass percentage, first, second and third division marks, if possible caste and gender wise data. चूंकि AICTE से लेकर नेट तक सभी हमको कास्ट एंड जेंडर वाइज डेटा, वैसे ये डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमको इस तरह से डेटा बाइफरकेट करके नहीं देती है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर कुछ हम मेंटेन कर सकें अपने आप तो मेंटेन कर लें. रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइंग नेट एंड JRF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, जो प्लेसमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट के कितने स्टूडेंट कहां पर प्लेस हुए हैं, एक रजिस्टर बना के हमें उसको मेंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज, और इसमें आएगा स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट लाइक स्टूडेंट सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस, क्विज, कंपटीशन एटसेट्रा. Formation and activities of student council of different departments of faculties. बात मेरी अंशु जी से हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट काउंसिल हैं इनका फॉर्मेशन, मुझे लगता है कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट काउंसिल बनती है, जैसे मेरे यहाँ भी बनती है, जहाँ पे नहीं बनती है तो जस्ट लाइक जैसे हम एक स्टूडेंट, लेकिन दैट इज नॉन पॉलिटिकल. वो केवल जो डिपार्टमेंट की एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल का फॉर्मेशन होता है. तो उसमें आप, अगर आपके यहाँ हायर लेवल पीजी भी है, यूजी है, तो प्रेसिडेंट आप पीजी लेवल से इलेक्ट कर लीजिए, यूजी लेवल से आप जनरल सेक्रेटरी कर लीजिए, फिर उसी में आप बाइफरकेट कर दीजिए. आप सेमेस्टर 1, 2, 3, सेमेस्टर 1 है, फिर 2 में वो चला जाता है, वो वही चलता है, 3 से ले लीजिए और 5 से ले लीजिए. वहां से आप कैटेगरी इस तरह बना लीजिए कि जो हायर लेवल पर है वहां से जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरीज, उसके बाद जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या जिस भी तरीके से आपको करना है उस तरह करके एक फॉर्मेशन कर लीजिए और उसके बायलॉज बना लीजिए. और बायलॉज बना के फिर उनको, जो हमारी स्टूडेंट काउंसिल है, उसको आप ड्यूटी डिप्यूट कर दीजिए कि आपको ये फंक्शंस करने होते हैं या करने हैं, ये आपको असाइन किया जाता है वर्क. उसके बाद आप आइए inculcation of a democratic process by election of class representative in all classes and sections, ये मैंने बता दिया. Organization of field trips, short excursions, library visit, industrial visit to museum, zoological and botanical garden, laboratories, institutes, etc. to add to the learning experience. Now the next, and that is the fourth one, that is the research and innovation. All the points are पार्ट ऑफ सेल्फ अप्रेजल. सेल्फ अप्रेजल साल में एक बार जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी को अपने टीचर्स का लेना होता है. और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूं, तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, जो IQAC कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको पता होगा कि जो सेल्फ अप्रेजल होता है, अब जो नया होता नहीं है, हम अभी कर नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन जो UGC रेगुलेशन में और उसके अकॉर्डिंग, जैसे यूपी में जो GO दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये कि जो सेल्फ अप्रेजल एनुअल होता है उसी के बेसिस पर ही प्रमोशन होता है. तो इसको इंश्योर करने हमारी ड्यूटी है कि जो सेल्फ अप्रेजल है वो हर कॉलेज का हर टीचर फिल करे और IQAC को भेजे और IQAC उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे. Research paper published by the teachers with special emphasis on those published in UGC Care 1 and Care 2 listed journal. Book chapters written by the teachers with the greater emphasis on textbooks. Research project submitted, granted, completed. Conference, symposia, seminars, workshop, OPs, RCs, etc. attended by teachers. Details of teachers who are research supervisors and the student under their guidance.
any seminar, conference, symposia, workshop conducted by the department. Full details of teacher to be entered in Abacus portal. Award and recognition achieved by the teacher. Details of membership of academic bodies, editorship, etc. Detail of collaborative effort by the department, including MOUs with other institutions, industries, visit, guest lectures from eminent persons of the other institutions. And the last one is infrastructure and learning resource maintenance. This is the last. Proper maintenance of classroom allotted to the department, including smart rooms. ये ड्यूटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की होती है कि उनको जो भी रूम्स अलॉटेड हैं उनकी देखभाल वो खुद करें, उनका मेंटेनेंस वो कराएंगे नहीं, करेंगे नहीं, लेकिन ये है कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वो जो अपनी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिखें या वहाँ जो भी स्टेट ऑफिसर्स हैं उनको लिखें और उसका मेंटेनेंस करें. स्पेशल एम्फेसिस टू मेक द लैबोरेटरीज अपडेट, वेल अरेंज्ड एंड विजुअली अपीलिंग. All equipments and machines should be in working condition. Chemical and glassware should be properly arranged and displayed. Stock registers of the department should have each and every entry up to date and verification of the in charge. Science department should be more careful while maintaining the stock registers. There should be a small departmental library in all departments on the book issue. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके जो पीजी के स्टूडेंट हैं या वैसे भी यूजी के स्टूडेंट कभी कभी या टीचर्स हैं, उनको पढ़ना है, तो अगर लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो कम से कम डिपार्टमेंट में अगर खाली टाइम में बैठे हैं तो वहां पर आपकी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी से बुक इश्यू करा के और उसका बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए. A list of books of subject available in the central library should also be there in the department. The department staff room should be clean, well arranged, and should reflect the ethos of the subject. The bulletin board should display departmental timetable, weekly schedule of current week, and any other relevant information news. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया. And the last one, that is the teachers attendance register, department leave register, in and out letters register should be maintained. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the session, and it was very informative for all of us. And I can see if any queries, you can raise your hands, please. Dr. Seema Sharma has raised her hand. सीमा जी, हाँ प्लीज. सीमा जी आप अनम्यूट हैं. जो क्वेश्चन आप पूछिए भारती मैम से. डिम्पल विज मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much. And Bharti ma'am, especially आपके लिए, it was a very nice session and very informative. मैम मेरी 2-3 क्वेरीज हैं. पहली बात तो अगर हमारे पास टीचर्स के रिसर्च पेपर कम है तो क्या हम JRF जो स्टूडेंट हमारे पास हैं उनका अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है तो उसे हम पब्लिकेशन में शामिल कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, यस. स्टूडेंट है ना आपका जो डेटा होगा वो हाँ जी, डेटा है. जी बोलिए. हाँ मैम, यही बात पूछनी थी क्योंकि कई बच्चे हमारे ऐसे जो हमारे यहाँ नेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में ही केवल रिसर्च है और वो स्टाफ कम था, तो हमने उन्हें क्लासेस भी पढ़ाने को दी और इन बिटवीन ही वो JRF हो गए. तो अगर उनकी पब्लिकेशन है या उनका जैसे JRF के थ्रू उनका मनी आया तो क्या इसको भी हम फंडिंग में शामिल कर सकते हैं? नहीं, फंडिंग में आप JRF को नहीं शामिल. अच्छा, लेकिन पब्लिकेशन उनके दे सकते हैं. पब्लिकेशन आप दे सकते पब्लिकेशन हैं दे सकते स्टूडेंट हो वाले उसमें जाकर. रिसर्च पब्लिकेशन जो टीचर्स का कॉलम है उसमें नहीं दे पाएंगे. जहां पर स्टूडेंट वाला है, देखिए उसमें था कि स्टूडेंट का भी है, तो आप उसमें लिख दीजिए कि these students are JRF और वो आपके. मैम हमारे जैसे 5 JRF स्टूडेंट हैं, वो JRF और नेट की कोचिंग ले रहे हैं और कंपटीशन के एग्जाम की कोचिंग भी ले रहे हैं, तो इसको हम ब्रिलियंट स्टूडेंट की स्टूडेंट प्रोग्रेशन में दिखा सकते हैं. हमारे यहाँ JRF नेट की कोचिंग चल रही है.
नहीं तो आप ही के अगर स्टूडेंट हैं तो वो प्रोग्रेशन में जाएंगे, हाँ जी, अगर वो बाहर से आए हुए हैं तो वो प्रोग्रेशन में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं मैम, अगर हमारे ही आप कॉलेज के हैं, जी हमारे ही कॉलेज के जेआरएफ बच्चे हैं 5, और वो बच्चे नेट और जेआरएफ की कोचिंग लेते हैं 1 से 2। हमारे यहाँ नेट जेआरएफ की कोचिंग चलती है हिंदी और पॉल साइंस पीजी के बच्चों के लिए, नहीं जारफ प्लस की कोचिंग और उसमें नहीं आप उसको प्रोग्रेशन में नहीं दिखाएंगे। इसमें नहीं दिखाएंगे। आप पूछ क्या रही हैं? मैं pardon? मैम मैं पूछ रही हूँ कि हम जैसे नेट और जेआरएफ की कोचिंग चलाते हैं, जी तो जो आपका 5वां क्राइटेरिया आप एक्स्ट्रा स्लाइड में दिखा रही थी स्टूडेंट प्रोग्रेशन में, कि ब्रिलियंट बच्चों के लिए हम नेट जेआरएफ की कोचिंग दिखा चलाते हैं, तो उसमें उसे दिखा सकते हैं ना। नेट जारफ की कोचिंग में आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन में ले जाएंगे कि केवल उसमें दिखाएंगे कि दे आर टेकिंग क्लासेस? मैम स्टूडेंट प्रोग्रेशन भी तो हो रहा है ना उससे, क्योंकि पीजी के बच्चे ही तो सीख रहे हैं, पीजी के बच्चे उससे कंपटीशन में सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन हो रहा है। चलिए कर दीजिए, उसका सर्टिफिकेशन आप कर दीजिएगा। हाँ वो सर्टिफिकेशन तो मैम जब रोज क्लास चलती है तो वो ऑटोमेटिकली विद हाँ जियो सर्टिफिकेशन टैगिंग तो फोटोग्राफ भी नहीं, हो जाएगा। हाँ मतलब वो सर्टिफिकेशन तो प्रिंसिपल ही करेगा ना, कोई और कर नहीं सकता है। तो हाँ जी, सर्टिफिकेशन आप जब कर देंगे उसका तो प्रोग्रेशन में चला जाएगा, ठीक है, ले सकते हैं। ओके मैम, ये डिपेंड अटल ऑन कि वो इनोवेशन, लेते हैं कि नहीं। हम तो यहाँ से करके भेजेंगे क्योंकि एनी अदर इंफॉर्मेशन है, हम उसमें उसको डाल देंगे, उसको सर्टिफाई कर देंगे, वो उसको लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन डाला जा सकता है क्योंकि अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं और अगर वो प्रोग्रेशन में जा रहे हैं तो उसको लिया जा सकता है। मैम ये अटल इनोवेशन लैब वगैरह जो है और रिसर्च इंक्यूबेशन सेंटर, ये आर्ट्स कॉलेजेस में कैसे लाए जाएंगे? हमारे यहाँ सिर्फ आर्ट साइड है। थोड़ा सा मुश्किल तो है ये स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप में जैसा सपोज करिए स्टार्टअप स्टार्ट करना तो इंक्यूबेशन सेंटर जो है, या तो इंक्यूबेशन सेंटर आप अपने यहाँ खोले, ये है तो हो सकता है, और नहीं तो इंक्यूबेशन सेंटर में ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो उनमें भी होती है ना, समझ हाँ रहे जी हैं ना? मैम, हाँ जी तो हाँ उनमें जी। भी होती है। हम आप तो इकोनॉमिक्स के हैं डिम्पल जी, आप जानती हैं, तो उनमें भी होती ही, यूजी के स्टूडेंट्स तो होंगे ना आपके यहाँ। मैम इकोनॉमिक्स में पीजी नहीं है, हिंदी और पॉल साइंस में पीजी है, और वो हाँ तो बच्चे जो इकोनॉमिक्स है में जब एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाते। तो जैसे इकोनॉमिक्स में पीजी है तो इंक्यूबेशन उसमें उनको तो मैम प्रमोट किया इकोनॉमिक्स में जा नहीं सकता है, है। इकोनॉमिक्स में नहीं है। इकोनॉमिक्स में पीजी नहीं है। हाँ जी, हिंदी और इकोनॉमिक्स में भी पॉलिटिकल अगर कोई साइंस में है। हिंदी का कोई स्टूडेंट है वो भी तो इंक्यूबेशन सेंटर के लिए वो है ना, उसके लिए आप प्रमोट करिए उसको कि कुछ सपोज करिए, मैं एक केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, और छोटा सा एग्जाम्पल है क्योंकि उसके लिए तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो ये है कि तमाम एंटरप्रेन्योरियल वो है, लेकिन एक छोटा सा है जैसे मिलेट को हम आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, तो मिलेट से रिलेटेड अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इस तरह का स्टार्टअप है जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट यूजी के स्टूडेंट भी अगर करना चाहे तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, और जो अदर है पॉलिटिकल साइंस का है वो भी उसको कर सकता है। ये मैम एक बात बताइए, हमारे यहाँ जैसे एक गर्ल थी वो पेंटिंग करती थी बॉटल्स पे, फिर हमने उसे एक वर्कशॉप कराया सीजीसीआरआई खुर्जा में, क्योंकि खुर्जा इज ए पॉटरी हब ऑफ इंडिया, और उसका हाँ वहीं से सिलेक्शन हो गया और वो डिजाइनर आर्टिस्ट बन गई पॉटरी इंडस्ट्री में, और उसके डिजाइन अब सारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो क्या जी इसको हम इनक्यू उसने इवन आनंदीबेन मैम को भी अपने प्रोडक्ट गिफ्ट किए थे बनाए हुए, बिल्कुल बिल्कुल आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। उसको वो तो बहुत इंक्यूबेशन अच्छी सेंटर में उसके पास हाँ आर्ट है ना, आप देखिए ना कितना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है उसके पास। हाँ जी हाँ जी। ऑडियो पे प्रोग्राम्स के तहत जितने हैं वो सभी इंक्यूबेशन में आ सकते हैं, ठीक है मैम, है ना? ठीक है, थैंक जैसे यू मैम, हमारे यहाँ थैंक यू मैम। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मूंज का है, बांध का है, तो वो हम उसको लखनऊ में भी लाके इंक्यूबेशन में ला सकते हैं ना, कि भाई ओडीओपी के अंदर गया, हम यहाँ पे उसको प्रमोट कर सकते हैं। हाँ मैम अभी छोटी ओडीओपी में ही छोटी है हमारे यहाँ भी, और हम सीजीसीआरआई खुर्जा के थ्रू बच्चों को वर्कशॉप कराते हैं, पॉटरी हाँ का सब कुछ बनाना सिखाते हैं, और वो बच्चे वहीं से प्लेस हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो प्लेस, वो आप इंक्यूबेशन सेंटर आप उसके लिए वो करके ना उसको प्रमोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नहीं। मच। हाँ नमस्ते मैम, मैं गवर्नमेंट नवीन कॉलेज मनोरा जशपुर छत्तीसगढ़ से। मैम आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन को यानी कि टीचर्स लोगों को किस वे में रखना है मैम? सील एंड साइन कुछ बोल रहे थे तो मेरा टेक्निकल इशू हो गया था, तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा था उस समय क्या मैम। मैं रिपीट कर सकते हैं समझ नहीं पाई आपकी बात को। मैम? रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है ना, हाँ टीचर्स लोगों को किस वे में अरेंज करके रखना है? सील एंड साइन कुछ बोल रहे थे इस टाइप से। अच्छा अच्छा, वो नहीं, वो अरेंज करके टीचर्स को नहीं रखना है, वो जो जब हम डेटा को अपलोड करते हैं, मैं उसकी बात बता रही थी,
कि जब डेटा को हम अपलोड करेंगे तो कोई भी डेटा विदाउट सर्टिफिकेशन अपलोड, सपोज करिए आपका पेपर है, सपोज यू हैव पब्लिश 10 पेपर्स, तो जो आपके 10 पेपर्स हैं उनका जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप हमको दे देंगे, लेकिन जो पेपर का फर्स्ट पेज होगा जहां पर ISSN नंबर होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, आपका नेम होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा और थोड़ा सा ब्रीफ में वो दिया होगा और पूरा जो है मतलब कहाँ पे किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है, उस पेज को हमको ट्रूथ कॉपी के तौर पर उसको सर्टिफाई करना होता है। तो वो IQAC और प्रिंसिपल उसको सर्टिफाई करते हैं। एक टीचर के सपोज देयर आर 10 पेपर्स, तो उसका 10 का, और इसी तरह सपोज देयर आर 20 टीचर्स, तो उनके 10 पेपर्स को उनको जो है वो सर्टिफाई करके और तभी हमको अपलोड करना है। अदरवाइज उसके बिना अगर आप अपलोड कर देते हैं तो दैट डजंट मीन। ये बता। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। प्रीति जौहरी, प्लीज। Yes, good evening, ma'am. Actually, there is a confusion that if for some years we are not having geotag photographs, then what else can be taken as evidence for the DVV? Voice is not clear. अंशु जी can you अरे मैम कुछ इयर्स के शुरू के इयर्स के अभी वी आर प्लानिंग टू गो फॉर NAC, और कुछ ना। शुरू के इयर्स के 2-3 इयर्स के फोटोग्राफ्स जियो टैग्ड नहीं है हमारे पास। हाँ। तो और ऐसा क्या एविडेंस दिया जा सकता है DVV को विच इज टेकन एज ए वैलिड एविडेंस? नहीं तो मैडम अगर पहले का नहीं है तो आप उसकी GOTT तो टाइम के थ्रू होता है ना, तो उसको कैसे देंगे, उसको नहीं दे सकते। अगर एक्चुअली हम लोग द कॉलेज हैज ए फेसबुक वॉल, तो फेसबुक पेज पर एवरी डे द थिंग्स आर अपलोडेड, तो क्या ठीक है। उसका लिंक कैन बी टेकन एज वैलिड? आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट कि आप जो फेसबुक पे फोटोग्राफ जो आपने लगाए हैं, लेकिन ये बताइए उस फोटोग्राफ में कहीं वो तो होगा नहीं, वो एवरी उसको डे अगर दे आर चेक बीइंग करना अपलोडेड। चाहेंगे तो क्या उसको चेक कैसे करेंगे वो? जब जिस दिन जो एक्टिविटी हो रही है उसी दिन का फोटोग्राफ लगाया जा रहा है सेम डे, इवन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड। आई डोंट, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। लोकेशन एंड हाँ, लोकेशन वही ना, लोकेशन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वो उसमें रहेगा ना जब जियो टैगिंग आप करेंगे। तो अब उस समय का अगर उस समय नहीं है जब आपने कराया, या लोकेशन नहीं है, but ma'am, time is there. Location is not there, but time is there. टाइम इज देयर। Yes. आई एम नॉट क्लियर, आई एम नॉट क्लियर। Okay. So it cannot be taken as a valid evidence. Maybe, maybe. Okay. We are also as institution, we are also facing that problem. Okay. We are going for second cycle and we are also facing such problem. Okay. Okay. Oh, thank you, ma'am. लक्ष्मीज आईफोन। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना कैमरा ऑन कर दें तो थोड़ा स्पीकर के लिए और सबके लिए, ओके मैम। और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी कहाँ से है। हाँ बिल्कुल मैम। मैम आपका ये भारती मैम का बहुत ही बढ़िया आपका लेक्चर रहा मैम। और मैं बोल रही हूँ राजस्थान से, SPC गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान से। अभी जनवरी में ही हमारा NAC का एक्रेडिटेशन हुआ और उसके अंदर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, हमें B++ मिला। कारण ये रहा, 175 ईयर्स पुराना हमारा कॉलेज है और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। पहले उसको A ग्रेड था, लेकिन अब जो है उसका डिमोशन हो गया, एक तरह से कह सकते हैं B++ हो गया। हमें जो कारण समझ में आया वो ये था कि नंबर ऑफ जो रेशियो था स्टूडेंट्स का वो बहुत ही कम रहा। पार्टिसिपेशन में जो भी एक्टिविटीज हैं उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था, मतलब उसका रेशियो के कारण हम थोड़ा सी मात खा गए। तो उसको कैसे हम उसको बढ़ाएं या क्या करें, या किस तरह से कितना परसेंटेज रेशियो होना चाहिए उसकी A ग्रेड के लिए, ये समझ सकते हैं हम। तो वो मैं पूछना चाह रही थी। तो मैम ऐसा है ना, देखिए आप सारे क्राइटेरिया, एक एक क्राइटेरिया को
वेटेज वाइज लेकर देखिए, रखिए उसमें मैम एक हमें एक तो क्राइटेरिया कितना है, वेटेज वाइज रखिए। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ आपके यहाँ प्रॉब्लम आई, लगभग ऐसी ही हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम आई। फ्रॉम द लास्ट Yes, 2 ma'am. years आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ IQAC, और हम लोग 2013 में नेक फर्स्ट साइकिल में गए, 14 में हमारा रिजल्ट आया, 14 में गए और नवंबर में, और 15 में हमारा रिजल्ट आया। आफ्टर दैट कोरोना आ गया, सब आ गया, हम भी थोड़ा सा डिले हो गए। तो No. जो प्रॉब्लम आपके यहाँ है ना, सेम प्रॉब्लम वी आर ऑल्सो फेसिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन। Yes, अब ma'am. दिक्कत है, अब आपका B++ है, A+ से वो हुआ क्या कि इम्तियाज उस समय बहुत था, A+ हम ले लिए, उसके बाद हाँ. हुआ कि हमको क्या लेंगे, तो जो नहीं वो मैम, ढीले हुए हैं ना, तो हम जितना मैक्सिमम, देखिए मैम मैंने अभी जो एक्सप्लेन, जी 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 कट मैम आई वो थिंक शी डिस्कनेक्ट हो गया उनका नेटवर्क। There might be some network issue. Any other queries, please? Please raise your hands. I think as of now, there is no query. Yeah. भर्ती भी नेक कराना जरूरी है, बहुत टिपिकल प्रोसीजर है। बहुत टिपिकल है और बहुत टिपिकल, बहुत डिफिकल्ट, दोनों। लेकिन कराना नेक्स्ट जरूरी है कि बचा जा करा, सकता है, कराना बहुत जरूरी हैवी इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट नेक भी। ने 2022 से मैंडेटरी कर दिया, आज नहीं तो कल। लेकिन इंस्टीट्यूशंस भाग पीछे इसीलिए जा रहे हैं कि अब और डिफिकल्ट कर, मतलब इतना टिपिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जब हम लोग फर्स्ट साइकिल में गए थे, एट दैट टाइम आई वाज आल्सो, एज यू नो, आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ IQAC, और उस समय हमारे लिए जितना आसान थी चीजें करना, वो अब बहुत डिफिकल्ट है। मतलब सोचिए कि अगर 2 साल का हमारे पास जो टाइम लैग हुआ है और उसमें जो चीजें हम मिस कर गए, अब उसकी जियो टैगिंग कराना इतना, मुझे, मैम अभी राजस्थान वाली जो मैम थी जो क्वेश्चन उठा रही थी, वो प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा तो नाम गवर्नमेंट में है, और मैनेजमेंट हमारा भी नहीं चाहता है कि कराया जाए, लेकिन चूंकि मैंडेटरी इसलिए कराना है। और ये है कि जैसे मैम ने कहा ना कि हम A थे, हम B++ आ गए, तो डर कहीं वो हमको भी है कि हम A थे, कहीं B++ ना आ जाए, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, हमें A++ लाना। इतना बड़ा, इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दिक्कतें वही है ना कि जो चीजें हम कोरोना काल में या 2 साल में मिस कर गए हैं, उसको हम कैसे वो करें, तो दिक्कतें तो बहुत है। और जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो, जिनको फर्स्ट साइकिल में जाना है, नए तरीके से कराना है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट हो सकता है कुछ रिलैक्स कर दे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं लगता है डे ऐसा पर कुछ डे भी। हार्ड हो रही है, रिलैक्सेशन तो नहीं दिख रहा, डे चीजें पर डे हार्ड लगातार, हो रही है। हाँ कंटिन्यूअसली आप देखिए चीजें, हाँ मतलब अब तो इतना मुश्किल है अंशु जी कि आप कोई भी क्राइटेरिया उठा के देख लीजिए, क्राइटेरियन 1 से लेकर 7 तक हर चीज में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, वेब लिंक्स आपको देने हैं, उसके साथ आपको जो है आपको जियो टैगिंग, सबसे जो चीज है वो जियो टैगिंग। अब जियो भारती मैम, टैगिंग अगर आपको करनी है हर चीज की, तो पुराने से आप कहाँ से लाएंगे? मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है कि ये जो पेटेंट होते हैं, पेटेंट के डिस्क्रिप्शंस कहाँ दिए जाते हैं? क्राइटेरिया 3 में देते हैं क्या हाँ, मैम? जो पेटेंट पेटेंट करा तो जी, मैंने लिखे थे, लेकिन मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि पेटेंट के बारे में मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ। तो जब जी मैम, पेटेंट वाला मामला आता है, तो उसके लिए हम अपने यहाँ साइंस वगैरह वालों को बुला लेते हैं और उनसे क्लियर, मैंने लिखा था इसमें, लेकिन उस हाँ जी, स्लाइड को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब पता नहीं आपके पास वाले में है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने अपने पास से डिलीट, मैं आपको भेज दूंगी, मेरे पास हाँ जी, मैटर है उसका, पेटेंट का, सुरभि मैं आपको सुरभि अलग से मैम, भेज दूंगी। हाँ हाँ जी, सुरभि मैम तो लोकल है, आराम से आपसे हाँ, डिस्कशन हाँ हाँ, आई एम तो यू वेरी कैन डिस्कस फॉर्चुनेट विद दैट मी। वे। नंबर आ ही गया है आपके पास, स्वाति जी के पास है, और सुबह जी हाँ जी आपके पास नंबर शायद होना चाहिए मेरा, जी नहीं मैम, होगा तो आप ले लीजिएगा और डिस्कस कर लीजिएगा। और मैम वो मैं स्लाइड थी, मैंने जी जानबूझ, क्योंकि मैं खुद बहुत क्लियर नहीं थी, तो इसलिए जी मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा कि मान लीजिए इस पर कोई क्वेरी हो तो उतना क्लियर आंसर शायद मैं न दे पाऊँ पेटेंट पे, ठीक है तो मैम, इसलिए मेरी मैंने उसको रिक्वेस्ट डिलीट है, कर अगर उसके डिटेल्स आप काइंडली हम लोगों से दिया। शेयर हाँ कर उसके डिटेल्स दीजिए। मैं आपको दे पक्का पक्का हाँ, सो दे काइंड, दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम आई थिंक there is no query right now.
Any other query? Please raise your hands if there is any query. एक्चुअली में जब लोग उस प्रोसीजर में जाएंगे ना तब ज्यादा जी। क्वेरी आएंगी। जो लोग उस अच्छा। प्रोसीजर में हैं उनके पास ज्यादा रहती है। क्वेरी उन्हीं के पास है जो प्रोसीजर में है, जो भी प्रोसीजर में नहीं उनके पास क्वेरीज उनके नहीं है। पास नहीं है। जनरली यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं जो जिनको लग रहा है हमें शुरू करना ही पड़ेगा, जिससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मैम तमाम एक तरह कॉलेजेस से अभी तो भी हाँ अरे I think लिखा वन ma'am, Dr. क्वेश्चन आई Mithilesh आस्क, Kumar in प्लीज chat. हाँ जी। रेज Please कीजिए है repeat, raise your hand, Mithilesh sir. रिपीट योर क्वेश्चन। Dr. Puneet Kumar is Can also I- want to ask for some question. प्लीज Please रेज योर हैंड। raise to your everyone. hands. क्या नाम है बताया उनका? उनको मिथिलेश। Ma'am, Dr. Puneet Kumar and Dr. Mithilesh Kumar Shukla. And one question is from Daya Shankar Singh Yadav. पुनीत जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हेलो प्लीज। जी, हाँ जी, बोलिए ये सर। हेलो। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। एक चीज मैं पिछले 3-4 दिन से सुन रहा हूँ, सभी का जो भी लेक्चर रहा बहुत ही अच्छा रहा है। मैं एक प्रश्न है, अगर आयोजकों से भी है और हमारे जो आज माननीय स्पीकर हैं अगर वो स्पष्ट कर ले तो और अच्छा है कि नैक जो ग्रेडिंग करती है, मार्क्स जो देती है 7 क्राइटेरिया में, वो कैसे होता है? क्योंकि हर क्राइटेरिया के नंबर होते हैं, उनका जो अंदर जो उनके पॉइंट होते हैं उनके सबके अलग अलग मार्क्स हैं। वो मार्किंग करने का कहीं स्केल 4 चलता है, कहीं स्केल 3 चलता है, ऑटोनॉमस का अलग है, यूनिवर्सिटी का अलग है, मेरा एफिलिएटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका अलग है। ये बहुत क्लियर नहीं है। मैं अभी मेरे यहाँ मार्च में ग्रेडिंग हुई है और बी मिला है हमें, लेकिन वो उसको लेकर हमने जितने एक्सपर्ट मान के सबसे पूछा तो सभी के अलग अलग व्यूज थे उस बारे में। कोई कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकता था कि इसका एग्रीगेट मार्क्स ये था, आपने इतना ऑब्टेन किया, और वो किस तरह से होता है। अगर इसको आज के हमारे स्पीकर बता दें तो और नहीं, अच्छा है, या मैं भी अगले। इस मामले में, क्योंकि ये उनका जो एनालिसिस है वो बेसिकली इकोनोमेट्रिक बेस्ड होती है, बहुत हाई टेक्निक यूज करते हैं वो, उसमें लगाते हैं उसको, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरा जी नंबर नोट कर लीजिए और उसको मैं अलग से आपसे डिस्कस कर लूं, प्लीज प्लीज मैम, है प्लीज। ना? थैंक यू। हाँ, थैंक वो यू। इकोनोमेट्रिक वो है, उसमें उसको लगाते हैं, वो पूरा इकोनोमेट्रिक टूल्स के थ्रू उसको निकालते हैं, वो डेटा फीड करके जितने थैंक भी यू। क्राइटेरिया है सभी को। थैंक यू। थैंक यू मैम। मिथिलेश जी Dr. आप Mithilesh अनम्यूट हैं। Kumar. हाँ जी। जी, आप सभी को सादर नमन। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार शुक्ल, गांधी महाविद्यालय उरई जालौन से। मैम, एक बात मुझे पूछनी है एमओयूज के संबंध में। आपने एमओयू में कहा कि डिपार्टमेंटल एमओयू भी आप करते रहे, लेकिन हम सभी जितने अशासकीय महाविद्यालय के लोग हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट की स्थिति ये है कि हमारे पास एक फैकल्टी होती है, 2 फैकल्टी होती है, और कोई इंटर डिसिप्लिनरी सिलेबस नहीं विश्वविद्यालय द्वारा जारी होता है। तो ऐसे में एमओयू डिपार्टमेंट के स्तर पर करने में प्रॉब्लम होती है, वो कैसे किया जाए? नहीं, डिपार्टमेंट के स्तर पे आप एमयू नहीं करेंगे, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में किस प्रोग्राम को आप किससे कोलैबोरेट करना चाहते हैं वो एमयू तो साइन करेगा प्रिंसिपल, लेकिन जो प्रपोजल उसका जाएगा एमयू का, वो जाएगा तो डिपार्टमेंट से ना। ये बात ये है, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में हैं, हम भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम जैसे अपने डिपार्टमेंट में सपोज करिए कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, कोई एमयू जी। कराना चाहते हैं, तो करेगा कॉलेज ही, करेगा कॉलेज, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेगा, लेकिन प्रपोजल तो हम दे सकते हैं ना कि हम इस तरह का काम। बस मैम एमओयूज तो हमारे भी 3 करीब साइन हुए हैं, पर उन्होंने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक तो नहीं किया है, मतलब कॉलेज से किया डिपार्टमेंट जैसे। लेवल पे नहीं होगा, जी मैम। डिपार्टमेंट लेवल
लेवल पे होगा ही नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट, सपोज आई एम एचओडी ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जी मैम। तो मैं उसके आगे आ तो सकती हूँ ना कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो हम अपने प्रिंसिपल से करके एमयू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जी मेरा मतलब ये था। जी। वैसे अच्छा। मैम प्रोग्राम स्पेसिफिक तो होता नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारा निलेट से हुआ मैम, कंप्यूटर कोर्सेज के लिए हुआ, तो ये कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं है ना, ये तो सभी कंप्यूटर कोर्स करेंगे जैसे निलेट गवर्नमेंट ऑफ नहीं, इंडिया किसी के। और भी कोई भी एमयू तो किसी भी उसमें हो सकता है ना। हाँ जी तो सपोज करिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई है, तो मान ठीक लीजिए है। हेड ऑफ द अच्छा इंस्टीट्यूशन को नहीं वो है, तो हम उसको ला सकते हैं, बात कर सकते हैं, और फिर वो है वो अपने डिपार्टमेंट के, हम इसको लेके आए हैं तो डिपार्टमेंट ऐसा का नाम नहीं होगा, नाम हेड ऑफ मतलब इंस्टीट्यूशन का ही होगा, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही साइन करेगा, लेकिन हम उसको कर तो सकते हैं ना आगे, ये बात। हाँ भारती जी, मेरी जानकारी में एक बार आया, किसी ने हमें बताया था कि हम मैक्सिमम 20 एमओयू ही आप साइन कर सकते हैं, 20 से ऊपर नहीं, ऐसा कुछ है? आपकी स्लाइड से मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। नहीं, ऐसा मुझे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, आगे आपने आज बताया है अंशु जी, मैं इसको जानकारी लूंगी कि क्या 20 से ज्यादा हम कॉलेज लेवल पर एफिलिएटेड कॉलेज या कंस्टिट्यूट कॉलेज के तौर पर नहीं कर सकते, ये मैं जान। मैम, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये मैं सिर्फ एमओयू पे नहीं बात कर रही, कोई भी एक्टिविटी आपने तो, चूंकि एक बार आप साइकिल में रहे हैं, तो अगर हम मान लीजिए हमने एमओयू ही कर लिया, हमने नीलेट से एमओयू साइन किया, उसके बाद हमने एक भी एक्टिविटी नहीं की उसके साथ, तो उसको कोई relevant है, अगर कोई एक्टिविटी नहीं की वही वो तो मैं कह रही हूँ। रिडंडेंट हो गया ना, हाँ, फिर वो रिडंडेंट माना जाएगा। ठीक वो है। रिडंडेंट हो गया, एक ना आपने एक कुछ दिया एक्टिविटी नहीं, तो करनी ही उसमें दिया पड़ेगी है ना। ना कि हाँ मतलब हाँ एक्टिविटी करनी है ना, वो एक्टिविटी आपको अपलोड भी करनी है, जी बिल्कुल। जो भी किया आपने वो अपलोड भी करनी है, आपने नहीं किया तो एक्टिविटी वो रिडंडेंट, जी आप मैम, कुछ भी नहीं। राइट। Ma'am, as of now, there is no query. दया शंकर जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? there should be. He was asking for PDF. PDF के लिए पूछ रहे थे कि पीटी का PDF में उपलब्ध पीडीएफ कैसे मांग होगा। रहे हैं तो उनको हम PDF शेयर आप करते दे हैं, दीजिए, उनका पर्सनली नंबर है मेरे आप पास, शेयर, मैं शेयर कर दूंगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, अगर पीपीटी चाहिए तो पीपीटी आपके पास है ओके दी, है ना, पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी है मेरे पास। आप शेयर कर दी। तो अंशु जी अब तो शायद प्रोग्राम खत्म हो गया, तो अब आपसे चाय मांग सकते हैं। घर, हाँ। So I think मैम अंशु मैम के पास से पहले हमारा इज मोर नियर, वी वेरी cordially invite you for the tea, and that will be a pleasure and a proud moment for the college also. विभा दूरवार मैम भी हैं, वो भी, उनका कॉलेज इसमें ऑर्गेनाइजिंग में है। विभा मैम, आप अपने को सेल्फ अनम्यूट कर सकती है ना, आप तो को होस्ट हैं। हाँ जी, विभा मैम इज co-host. Okay, ma'am. Thank you. Am I audible, ma'am? जी, You are audible but you are not visible. Yeah, just a minute, ma'am. Just a minute. 1 minute. Okay. Now I am visible also. Good evening, Yeah, everyone. मैम, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रही हूँ। एक तो ये जो 20 MOUs वाली बात है ना, वो ये है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के 20 MOUs हैं तो वो उसमें पूरा नंबर स्कोर कर रहा है, देयर इज, वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट अगर 20 हम कर लेते हैं तो उसमें जितने नंबर हैं पूरे के पूरे, बेंचमार्किंग में अभी देख रही थी तो उसमें वो पूरे नंबर स्कोर हो जाते हैं मैम, दैट वो उसका ये इशू है, 20 लिमिट नहीं है। और दूसरा, अभी एक जो पेटेंट वाली बात हो रही थी, जस्ट शेयर करना चाह रही हूँ। एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं अभी आपको बताती हूँ, वो होता है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ना अगर कॉलेज, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी, कॉलेज अगर चाहे उनको ऑनलाइन अप्लाई करे, ऑनलाइन अप्लाई करने पे वो एक आपको डेट दे देंगे और वो एक प्रोग्राम कराते हैं, वो है IPR अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें 2 घंटे का प्रोग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और वो बहुत सारी चीजें क्लियर कर देते हैं
पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, एवरीथिंग दैट टेल यू। वहाँ वो पेटेंट एजेंट उसका लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो वो बहुत अच्छा था। बस यही 2 मेरे को चीजें शेयर करनी थी। और मेरे कॉलेज हमारी में भी अच्छी जा साइंस रही है। में भी एक टीचर ने पेटेंट कराया है अपना, मैं उनसे भी क्लियर कर लूंगी। ही वाज मैम ये आल्सो मेंबर ऑफ प्रोग्राम फॉर द होल कॉलेज हो जाएगा ना। इंस्टीट्यूशन ने अप्लाई किया, उन्होंने आपको डेट दिया, आप वो गूगल फॉर्म शेयर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या, आप किसी और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। जितने लोग उसको अप्लाई करते हैं, मतलब भर देंगे फॉर्म को, वो एक निश्चित टाइम होता है, वो टाइम वगैरह सब देते हैं। उसमें ऑनलाइन हमको जुड़ना है उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। इसका नाम है IPR अवेयरनेस प्रोग्राम, NIPAM। गवर्नमेंट इट्स अ कॉलेजेस गुड तो वन। ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। अभी हमारी फ्रेंड हैं वहां पर मैम, रामनगर उत्तराखंड में, उन्होंने जी अभी लास्ट ईयर ही 6 मंथ्स बिफोर जो है जी IPR पे एक प्रोग्राम कराया है, यही जो गवर्नमेंट वाला है। हाँ, तो वो ठीक रहेगा ना, हमारे वो सर्टिफिकेट काम में आ जाते हैं। कभी जब हम अपनी वो SSR वगैरह बनाएंगे, तो उस सब में थोड़ा ये अच्छा रहता है। एक हमारा पोजीशन, ये नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ नंबर में स्कोर होंगे, बट इस तरह के प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं। और सेकेंडली, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के बारे में ना बेसिक नॉलेज सबको हो जाती है। इससे ये फायदा होगा कि पूरे कॉलेज को इसकी नॉलेज रहेगी, कैसे क्या करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह। इस रेफरेंस में मैं अंशु जी, कमल शेयर मेहरोत्रा जी जो है वो मेरा नंबर वो कर रहे हैं, आप उसमें चैट बॉक्स में कर दीजिए, अदरवाइज आई। ओके मैम, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक में यू। विभा दी ने ही हमें बताया था 20 MOUs के लिए, तो इसीलिए वो मैम 20 जो है ना, 20 तक तो हम इसलिए पहुंच जाएं जिसमें कि हम मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लें, पूरे के पूरे नंबर फुल स्कोर स्कोर, कर लें। हाँ, फुल स्कोर। वो उसके लिए मैंने 20 कहा था। 20 से ज्यादा करने पे कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है। ओके, चलिए ठीक, थैंक यू। शिवानी जी भी है, आप कोई बात करना चाह रही हैं? शिवानी मैम। कोई कपिल मेहरोत्रा जी हैं, वो मेरा नंबर चाह रहे हैं हाँ, अंशु जी, मैं आप लिख रही हूँ चैट बॉक्स पे, एक्चुअली में अभी आप शिवानी चैट मैम लिख बॉक्स रही में हूँ। डाल। नमस्कार अंशु जी, मैं शिवानी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। एक्चुअली तो मैं शिवानी जी जी विजिबल हो जी जाइए, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, जिनको क्वेश्चन पूछना उन्हें विजिबल होना पड़ेगा। तो होना क्वेश्चन पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैं शिवानी जी के थैंक यू। क्वेश्चन का तो जवाब ही इवन नहीं दूंगी। इवन भारती दी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हाँ श्रीमती एक्चुअली शिवानी शिवानी मैम। जी के क्वेश्चन जी का तो जी जी, मैं लेकिन जवाब ना देने वाली। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, हर व्यक्ति स्टूडेंट है, और हर जो आपकी जितने भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे लगता है हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाता है। और आपकी भी जो प्रेजेंटेशन थी और विभा मैम का जो क्लैरिफिकेशन था, वो बहुत यूजफुल रहा मेरे लिए। बस मेरा बीइंग एन बस एक इसको आप क्वेरी मान लीजिए, या मान लीजिए कि मेरी अपनी थोड़ी सी दुविधा रही जो मैं नहीं कर पा रही थी। वो वही पूछना था, मैम ने जो बताया कि IPR पे सेमिनार कंडक्ट कराइए, तो वो तो एक्चुअली है हमारे उसमें क्राइटेरिया 3 में, कि IPR पे या रिसर्च मैथोलॉजी, या फिर आप किसी ऐसे इंटरप्रेन्योरशिप पे आप प्रोग्राम कंडक्ट कराइए, तो उस पे आप नंबर ऑफ कंडक्टेड प्रोग्राम्स पे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मेरी क्वेरी ये रही कि चूंकि मेरा भी एक पेटेंट मैंने कराया है रिसेंटली, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, उस पे मेरा खुद का पेटेंट हुआ है, उसका कोई भी कॉलम मुझे पूरे AQAR में नहीं मिला कि जहां मैं उस चीज को फिल कर सकूं, और शायद इंस्टीट्यूशन को इसका कोई फायदा मिल जाए। तो मैं इस लिहाज से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वो चीज कहीं पर्टिकुलर किसी AQAR के कॉलम में मुझे दिखी नहीं, अगर कहीं दिखी हो, अगर आपके पास इसकी जानकारी हो, तो IPR हम में उसको नहीं है इंक्लूड कहीं करें। भी। वो IPR उसमें का AQR वर्कशॉप में, कंडक्टेड में है, AQR लेकिन में पेटेंट में नहीं है। एक्चुअली तो मुझे ये पता चला कि ये शायद यूनिवर्सिटीज में ही है इस बात की जो मार्क्स मिलते हैं, मे बी लेकिन ऑटोनोमस कॉलेजेस में। मैं बहुत श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया। शायद इतने विद्वजनों में ये शायद मुझे एक परेशानी जो है, मुझे उसका आंसर मिल जाए।
तो यही मेरा एक क्वेश्चन था कि किस AQR के किस पार्ट में हम पेटेंट को दाखिल करें, पेटेंट का डिस्क्रिप्शन दाखिल करें, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट को उसका फायदा मिल सके। चलिए, ये जानकारी मैंने पहले ही कह दिया था कि पेटेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। अभी जी। सुरभि जी ने भी पूछा था, तो मैंने कहा जानकारी हाँ, गैदर हाँ। करके बताऊंगी। तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ पेटेंट्स मेरे यहाँ भी हुए हैं। तो मैं उसको देख लेती हूँ कि क्या कॉलेजेस के लिए है या नहीं है, या केवल यूनिवर्सिटीज के जी, लिए जी, है। क्योंकि हम जो एग्जैक्टली। AQR भरते हैं दैट इज फॉर एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। तो कॉलम्स जी, मैं भी एग्जैक्टली थॉरली उसमें चेक नहीं, कर लूंगी। हाँ, उसमें मुझे नहीं दिखा एक्चुअली, तो अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है हाँ, तो मैं मैं देख जरूर उसको लेती लेना हूँ। चाहूंगी। देखती ठीक, हूँ ठीक। इसमें कहाँ पर कुछ है कि नहीं है, मैं देख लूंगी, देखकर आपको बता दूँ। ओके, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू अंशु जी। भारती शिवानी जी, मैम एक लास्ट नमस्कार। क्वेश्चन। मैंने कहा जी, मैं भी जी। शिवानी मैम को नमस्कार कर दूं। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मैडम का मच, भी बहुत आप लोगों ने सपोर्ट मुझे रहता है इंक्लूड कॉलेज किया। को। थैंक यू। भारती जी, हैंड रेज हो रहे हैं, क्या किया जाए? आपको चाय भी पीनी है। कौन है लोग, पूछ लीजिए। एक कंचन जी और डिम्पल विज मैम अगेन। एक हाँ, कंचन जी डिम्पल भी। जी, डिम्पल जी से तो मैं जरूर बात करूंगी, वो हमारी इकोनॉमिक्स की। पहले तो कंचन जी से, उनका हैंड पहले रेज है। तो कंचन मैम से भी बात करूंगी। कंचन जी प्लीज, आपको। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बात सबसे करूंगी, लेकिन डिम्पल जी को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर कहीं किसी फोरम पे मिलेंगे तो डिम्पल जी मेरी क्लास ले लेंगे। हाँ, विभागीय मैटर भी है ना। हाँ, विभागीय मैटर। कंचना जी, अच्छा, कंचना Hello. गौकर। Hello. जी मैम। Hello. Good evening, ma'am. This is Dr. Kanchana. I'm from Karnataka. Uh, I have two queries. One is especially in Karnataka, we don't have much UGC care list journals in Kannada. So, but according in our college, so they are telling that compulsory we have to publish UGC care list publication for IQAC. Is it really compulsory? Especially we don't have any care list, because only we have ISBN journals. We don't have any ISSN journals in Kannada languages. So in such situation, what we can do? Publication, ma'am, as it is mentioned by the NAC, publication is counted only if it is published in UGC care listed journal. Yes, Without since we do. UGC care listed journal, it is not going to be calculated or scored in NAC accreditation or NAC validation. But we don't have any such UGC care list journals in Kannada from Kannada department. You don't have any care listed journal in. There are some, very one or Then two. ma'am, try to include it. Otherwise, it अरे will भारती create a मैम, problem for हिंदी you. में Really we need that they're telling that we need to publish in care list. We are not Then getting any such kind of Hindi, Ankuji, in Hindi we हिंदी have में भी केयर लिस्टेड बहुत लिमिटेड हैं। limited. They are बहुत limited, but लिमिटेड। there are certain journals in care list in Hindi medium. एक्चुअली जब बहुत सर्च करते हैं 3-4 ही मिलते ही नहीं है हिंदी में भी। One हम such is ISBN very rare. valid लिमिटेड मेरा है। एक क्वेश्चन, मेरा मेन इंटेंशन ये था कि रियली ISBN journals are not even valid according to IQAC or NAC. Only ISSN journal is not valid for NAC. Score. No. Okay, ma'am. Journal which are included in the UGC care list 1 and 2. 1 journal list and 2 Scopus and Web Sciences. Only those journals can be included, counted even. Okay, ma'am. Thank you. टिम्पल मैम लास्ट वन, उसके बाद हम लोग भी चाय पियेंगे दी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मेरा तो बस नहीं, मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है Hans, अभी Tattva, Sindhu, all are in Hindi and they all are in UGC care list. सब नागपनी है, तत्व सिंधु है, हंस है, योजना है, all are in Hindi. They are in care list. इंग्लिश के ज्यादा है, हिंदी के कम है। ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र में भी, हमारे कुछ फ्रेंड्स वहां पर हैं,
वो भी कह रहे थे कि जो है हमारे यहाँ जो मराठी लैंग्वेज के जर्नल्स हैं वो ज्यादातर जो है वो केयर लिस्ट में नहीं, ये प्रॉब्लम्स हैं। सबको मिलके प्रोटेस्ट करना चाहिए हाँ, यूजीसी के प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट। चाहिए, इसीलिए आपकी नॉलेज में डाल दिया है। इन मैम से जब संपर्क करते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, मराठी मैम से भी लेते हैं, सब करते हैं प्रोटेस्ट। डिम्पल जी, डिम्पल जी का जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा तो मैम कोई बात नहीं की जाएगी। डिम्पल मैम डिस्कनेक्ट हो गई, network डिस्कनेक्ट हो issue। गया है। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया। Shall we move forward? अंशु जी, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे तो भेज दीजिएगा। हाँ, मेरे मोबाइल से हम ले तो रहे हैं अलग अलग, स्वाति जी के पास होंगे। मैं ले रही हूँ बीच बीच में। मैं ये कह रही थी डिम्पल जी, तो पर्सन आप बात फोन पे भी कर सकते हैं, इसको वाइंड अप किया जाए क्या? वाइंड अप, हाँ प्लीज प्रोसीड, आगे बढ़िए। Okay. Now at the end, I would like to request Dr. Ranjit Kaur ma'am. She is the senior faculty from our college, Shri Guru Nanak Girls Degree College, Lucknow. I would like to request her for the vote of thanks. Over to Dr. Ranjit Kaur ma'am, please. Ranjit ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू डॉक्टर स्वाति। धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता में मैं सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर के चरणों में अरदास, वंदन और शुक्राना करना चाहूंगी, जिनकी असीम अनुकंपा ने आज हम सभी को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकत्र होकर इस वेबिनार को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्षम बनाया। तत्पश्चात मैं इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और विशेषकर डॉक्टर अंशु केडिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो सदैव ही कुछ नवीन करने के लिए हमें प्रेरित करती रहती हैं। साथ ही मैं अपने महाविद्यालय की कर्मठ और प्रबुद्ध प्राचार्य डॉक्टर सुरभि जी गर्ग को भी धन्यवाद करना चाहूंगी हृदय से, कि जो कि दिन रात महाविद्यालय की प्रगति और उन्नति के लिए प्रयासरत रहती हैं और आज उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, मैं आज की इस कार्यशाला के चौथे दिन की अपनी आदरणीय वक्ता प्रोफेसर भारती पांडे जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सहज और सरल ढंग से क्राइटेरिया 3 और उसके जो सब पॉइंट्स थे उसके बारे में हमें डिटेल से जो है जानकारी दी कि किस तरीके से हम वेरियस सेमिनार्स करके, वर्कशॉप्स करके और इस तरीके के इनोवेशंस करके कई तरीके के हम अपने जो क्राइटेरिया 3 का वेटेज है उसको हम बढ़ाकर अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपकी इतनी जानकारी से हम बहुत ही लाभान्वित होंगे। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हमें पता चली कि हमें कौन कौन से फाइल्स बनानी है, क्योंकि अभी जो कॉलेज फर्स्ट साइकिल में जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये चीजें हैं कि हमें 0 से शुरू करना है। थैंक यू सो मच मैम, और मुझे आशा है कि हम सभी इससे जरूर ही लाभान्वित होंगे। और मैम जैसे कि आपने कहा चाय पीने आएंगे तो आप हमारे पड़ोसी कॉलेज हैं, आप जरूर आइए। प्रिंसिपल मैम की तरफ से आप बिल्कुल